in charge of prototyping and reconfigurable system PARCS lab at MNIT Jaipur. His area of specialization is biomedical signal processing, smart healthcare, VLSI, DSP systems, and embedded system design. He is a senior member of IEEE, member of IETE and IEI. He has also published 70 plus research articles in excellent peer-reviewed international journals, conferences, and also has published 6 book chapters. He served as a reviewer of technical journals such as IEEE Transactions, IEEE SS Springer, elsewhere, and also served as technical program committee member for IEEE conferences, ISES 19, ISES 20, ICCE 21, and ISVLSI 21. He also received the honor of UGC Travel Fellowship, the award of SERB, that is served as DST Travel Grant, and CSIR Fellowship, and also attended well-known IEEE conferences, TenCon 16, TenCon 17, ISCAS 18, MINACOM 19, etc. across the world. He has served as session chair at various IEEE conferences like TenCon 2016, ISES 2018, ISES 2019, ICCIC 14, etc. He has supervised 3 PhD theses and 1 more research scholar have submitted their thesis. He has also supervised 23 MTech projects and 17 BTech projects in biomedical signal processing, VLSI embedded system. He is also the founder and director of startup, that is Savayogyam Medical Devices Private Limited, which is presently incubates at MNIT Innovation and Incubation Center, MIIC Jaipur. So thank you very much, sir. Thank you for accepting our invitation for delivering this expert lecture. Now I hand over the session to our president, Dr. Rahul Raj Chaudhary, sir. Dr. Rahul Raj Chaudhary, sir, the session is handed over to you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Praveen, sir. Thank you. I formally welcome Dr. Amit to this program. We'll start talking about that innovation cell and why this impact lecture is being organized. So first, as per the mandate of the new education policy, I would also request to the presenter also to be more bilingual mode of that lecture should be there, because most of the students are from different lingual background. Hindi is also there. So अगर दोनों languages में थोड़ा सा students को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. So पहली बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि engineering एक बहुत बड़े difficult tough phase से गुजरी है. Engineering is facing a very difficult phase as of date in India, where engineering is being asked whether to show its significance in the society. Because जो Indian economy है वो struggling mode में है, we are struggling with our products also, and all because of our technology what we are developing, the technology what we are providing to the industries, and the products which are whether usable or not. So innovation, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक इनोवेशन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए, रिसर्च के लिए ये जो एक अलग से मुहिम चलाई है ताकि हम लोग इंजीनियरिंग को यूजफुल बना सकें, सोसाइटी के लिए काम आने वाली चीजें बना सकें और इससे इंडस्ट्री को थ्रस्ट मिल सके, हमारी इकोनॉमी को एक जो है स्ट्रेंथ मिल सके. This will create jobs also that will deal with the national problem of unemployment. तो ये सारी की सारी चीजें जो है इंजीनियरिंग के आज जिम्मे हैं और हमें ये सारा का सारा जो काम है प्रोडक्ट डेवलप करके, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करके, दैट इज टू बी यूजेबल बाय सोसाइटी, ये सारा जो है चीजें करनी हमारे लिए एक जरूरी हो गया है. अगर आज हम देखें मोर देन 60% स्टार्टअप्स, जितना इनोवेशन की आज जरूरत पड़ रही है, लगभग 50-60% स्टार्टअप्स जो है हेल्थ केयर फील्ड में आ रहे हैं. हेल्थ केयर इज नीडिंग लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट. हर रोज
अलग अलग तरह का जो रिक्वायरमेंट्स है, अलग अलग तरह की जो नीड है, उसको इंजीनियरिंग के थ्रू एड्रेस करना बहुत जरूरी हो गया है। और इसी में हमें जो सबसे अच्छे जो अप्रोप्रिएट पर्सन जो कि एक टेक्नोलॉजी में जो है हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में जो काम कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनके पास पेटेंट फाइल हुआ है उनका, एंड स्पेशली बीइंग ए फैकल्टी मेंबर ही इज आल्सो रनिंग ए स्टार्टअप, हिज ओन स्टार्टअप, his own business group. So this is all with Dr. Amit Joshi, and we have Amit Joshi with us, and I feel that every student will get lots of benefit, inspiration with Dr. Joshi. He is in MNIT and he is dealing with different type of technology, VLSI also, that healthcare technology, digital signal processing. So everything he is integrating for his products, and all the students, all the faculty members, we are going to feel that how he is doing that, and वही चीज हम हमारे इंस्टीट्यूशन में हमारे लेवल पे भी कर सकें. So thank you, Dr. Amit, and thanks all the participants. You are here, and I hope this will be a very good session. Thank you. धन्यवाद सर. जो मैं सर समझ पा रहा हूँ कि मीन्स यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो होंगे वो हिंदी में शायद ज्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे. ठीक है, तो मैं भी जितना भी, हालांकि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा हिंदी इतना अच्छा है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट. मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपको अपनी चीजों को कन्वे कर पाऊँ हिंदी में. ठीक है, तो मैं पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ सर एक बार. सर मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर? सर आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो? यस सर. ओके ओके ओके, धन्यवाद सर. हाँ दिख रहा है. ओके ओके, थैंक यू सर. तो जैसे कि मीन्स मुझे लग रहा है कि एक नया आपके दिख रहा है. हाँ ओके, आपके कॉलेज में एक नया अध्याय चालू हो रहा है जिसमें हम टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बात करें, स्टार्टअप के रिलेटेड बात करें. ठीक है, एक्चुअली क्या है कि हमने पिछले 1-1.5 साल में बहुत कुछ देखा है. जब से ये कोविड आया है तब से हमारी लाइफ में बहुत सारे चीजें चेंजेस हुई है. ठीक है, जैसे कि पहले अगर कोई मुझे ही ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर करने के लिए बोलता था तो मैं उसको सिंपली मना कर देता था. ठीक है, क्योंकि एज अ टीचर मुझे स्टूडेंट्स को देख के उसका चेहरा पढ़ के पता चल जाता था कि वो कितना कर रहा है. पर अभी because of the COVID we have shifted to a digital platform where we are adapting this technology, और हम किसी को भी दूर से कनेक्ट होके उससे हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं. ठीक है, अभी इंजीनियर का रोल जो है ना वो बहुत क्रूशियल है. आप हेल्थ केयर डोमेन में बोलो या फिर कोई भी सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो. ठीक है, इंजीनियर का रोल बहुत ही क्रूशियल है. ठीक है, अगर हम इस स्पेसिफिकली पेंडेमिक की बात करें कोविड-19, तो उस पेंडेमिक में हम सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि डॉक्टर्स ने अपना काम बहुत अच्छी तरीके से किया, बहुत अच्छी तरीके से किया. हम अप्रिशिएट भी करते हैं. ठीक है, पर मुझे कई बार ऐसा लगता है कि एज अ इंजीनियर हम कुछ चीजों में पीछे रह गए जो हम एक्चुअली में इस पेंडेमिक में कुछ कर सकते थे. ठीक है, क्योंकि अगर हम सही तरीके से बात करें तो डॉक्टर भी एक तरह से कुछ हद तक मींस इंजीनियर की टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाय करता है. ठीक है, जैसे कि एक सिंपल सा एक आपको उदाहरण दे दूं कि अगर आपको कुछ अगर होता है, ठीक है, तो आप सबसे पहले आपके नजदीक में जो भी एक अच्छा सा अस्पताल होगा ना उस पे जाने की कोशिश करोगे. आप उस टाइम पे ये नहीं देखोगे कि वहां पे कौन सा डॉक्टर मिलेगा. ठीक है, आप उस टाइम पे ये सोचोगे कि मैं कहां पे नजदीक में जाऊं क्या जहां मुझे अच्छी फैसिलिटी मिले. ठीक है, जो फैसिलिटी की हम बात करते हैं हॉस्पिटल में, वो फैसिलिटी इज नथिंग बट द क्रिएचर ऑफ द इंजीनियर. वो जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो कोई सही ढंग से काम कर सकता है तो वो इंजीनियर है. तो हम जब भी अभी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं स्पेसिफिकली हेल्थ केयर में, तो हम
अच्छे अस्पताल की बात कर रहे हैं, ना कि अच्छे डॉक्टर की, ठीक है। और अच्छे अस्पताल वो अपनी टेक्नोलॉजी से जाना जाता है, ठीक है। तो इंजीनियर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये कोविड-19 में भी अगर हम इंजीनियर उसको अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी सही टाइम पे प्रोवाइड कर पाते तो शायद इसकी इंपैक्ट तो हम रिड्यूस कर सकते थे, ठीक है। अभी भी हमने कुछ चीजें डेवलप की है जो इंजीनियर के दिमाग से है, जो कारगर साबित हो भी रही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं आज अपने ये जो लेक्चर है उसमें 1-1.5 घंटे में बेसिकली हेल्थ केयर डोमेन के लिए बात करूंगा। और हेल्थ केयर डोमेन के लिए मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा स्मार्ट हेल्थ केयर क्या है, ठीक है। क्योंकि हेल्थ केयर तो हम बहुत टाइम से बेसिकली वी आर बीइंग एसोसिएटेड, ओके। बट स्मार्ट हेल्थ केयर की जरूरत क्यों पड़ी और हमें स्मार्ट हेल्थ केयर क्यों चाहिए, मैं उसमें एक केस स्टडी लूंगा जिसमें डायबिटीज के रिलेटेड बात करूंगा। डायबिटीज के रिलेटेड इसलिए कि मैं जो अपनी कंपनी मींस एस्टेब्लिश की है उसमें बेसिकली जो प्रोडक्ट और सॉल्यूशन हम जो बना रहे हैं वो बेसिकली डायबिटीज पीपल के लिए है। तो मैं लास्ट में 10-15 मिनट में मेरी कंपनी की डिटेल्स और हम किस चीजों पे काम कर रहे हैं और क्या हम बेसिकली सोसाइटी को प्रोवाइड करना चाहते हैं उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा ब्रीफली आपसे हेल्थ केयर डोमेन में और डायबिटीज के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो मैं अपने लेक्चर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। और ये लेक्चर पॉसिबली मैं चाहता हूं कि वन साइडेड ना हो, आपको जब भी कोई डाउट हो तो आप मुझे उसी टाइम पे रोक के पूछ सकते हैं, ठीक है। जिससे मेरे लिए भी आसान रहेगा कि मुझे भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा और मीन्स आई कैन बी अ लिटिल बिट ऑफ रिलैक्स इन बिटवीन, ओके। सो मैं पहले हेल्थ केयर के ओवरव्यू के बारे में बात करूंगा, स्मार्ट हेल्थ केयर की जरूरत के बारे में बात करूंगा, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में बात करूंगा। फिर मैं डायबिटीज के बारे में बात करूंगा कि डायबिटीज क्या है और उसके लिए हम क्या प्रॉब्लम है उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। उसके बाद एक जो हमने प्रोडक्ट इनिशियल लेवल पे लैब प्रोटोटाइपिंग बनाया है उसके बारे में बात करेंगे। जो हम इंटेलिजेंट ग्लूकोमीटर बनाया है जो हम उसको आईग्लू बोलते हैं, ठीक है। फिर डायबिटीज कंट्रोल में ये पर्टिकुलर हमारा जो डिवाइस है वो कैसे काम करेगा उसके बारे में बताएंगे। फिर हम डायबिटीज को कोविड-19 से रिलेट करेंगे क्योंकि कोविड-19 में जो भी डेथ हुई है उसमें से 35 से 40% लोगों को पहले से डायबिटीज थी, ठीक है। एंड जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं और जिसकी वजह से कोविड में आपका डेथ का रेशियो बढ़ जाता है, ठीक है। लास्ट में मैं अपनी कंपनी के बारे में बताऊंगा जो स्व आरोग्यम मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड है जो MNIT में है और उसमें हम क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले तो हमें स्मार्ट हेल्थ केयर को समझने की जरूरत है और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है। तो जब हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो हेल्थ केयर में एक ट्रेडिशनल हेल्थ केयर है। तो ट्रेडिशनल हेल्थ केयर बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल हेल्थ केयर में बेसिकली हम यूजुअली क्या देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है तो उसको आईसीयू में एडमिट किया जाता है। अभी जब भी पर्सन का आईसीयू में एडमिट होता है तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए एक डेडिकेटेड नर्स स्टाफ होता है जो उसकी हर बार केयर करता है। कई बार ऐसा होता है कि वो नर्स स्टाफ वहां पे अगर मौजूद नहीं है तो हो सकता है कि पेशेंट की जब तबीयत बिगड़ रही हो तो उस टाइम पे उसको जो प्रॉपर केयर, उसको जो सही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल सकती। और अगर वो ना हो तो उसके लिए बेसिकली क्या हो सकता है कि आपका पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। बेसिकली कोविड में भी यही हुआ है कि कोविड में क्या है कि एक साथ बहुत सारा लोड आ गया और वो पेशेंट की केयर करने के लिए जो सफिशिएंट मैन पावर चाहिए था वो हमें नहीं मिला और जिसकी वजह से बहुत सारे कोविड डेथ को हम रोक सकते थे पर नहीं रोक पाए, ठीक है। दूसरा कि जब मैं ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम की बात करता हूं तो वो हेल्थ केयर सिस्टम में मेरे को बहुत सारी चीजों की ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे कि अगर मैं कोई चीज की वजह से बीमार पड़ा तो मैं पहले डॉक्टर के पास जाऊंगा, ठीक है। डॉक्टर के पास जाने से पहले भी मुझे उसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद मैं डॉक्टर से मिलूंगा। डॉक्टर फिर हो सकता है कि मुझे उसके लिए कुछ टेस्ट करने के लिए बोले तो मैं टेस्ट कराऊंगा। टेस्ट करने के बाद उसका रिपोर्ट आएगा वो लेके डॉक्टर के पास जाऊंगा। फिर वो मुझे प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, वो फिर मैं
दवाई की दुकान पे जाऊंगा, दवाई की दुकान से वो दवाई लूंगा और फिर मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो एक जगह पे डॉक्टर है, एक जगह पे आपकी पैथोलॉजिकल लैब है कि जहां पे आपको मीन्स टेस्ट करवाना है, फिर एक है आपका मेडिकल शॉप में भी आपको प्रिस्क्रिप्शन लेके जाना सकता है। कई बार आप देख सकते हो कि मेडिकल शॉप में आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना तो वो दवाई मिलती भी नहीं है। ठीक है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, पर अगर मैं सही बात बोलूंगा, अगर मुझे कोई गंभीर बीमारी हुई है, ठीक है, जिसमें मुझे ट्रीटमेंट सही चाहिए, तो उस टाइम पे ये सारी चीजों में मैं पढ़ना नहीं चाहता, ये सारे मेरे लिए हेडेक हो जाते हैं। ठीक है, और कई बार इसमें डिले अगर प्रोसेस में हो जाए तो एक इंसान की जान भी जा सकती है। तो ये जो सारे स्टेक होल्डर है, पहले तो वो एक दूसरे से मिले नहीं हुए, मिले इन द सेंस कि वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, क्योंकि मैं डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है वो प्रिस्क्रिप्शन लेके जाऊंगा तो ही मुझे दवाई मिलेगी। डॉक्टर ने जो मुझे ट्रीटमेंट बोली और डॉक्टर ने जो मुझे बेसिकली टेस्ट बोले, वो टेस्ट में जब भी दिखाऊंगा तभी वो मुझे करेगा। ठीक है, मुझे वो पर्टिकुलर टेस्ट के लिए सैंपल्स कलेक्ट करेगा। तो ये सारी चीजों के वजह से कि जिसमें सारे लोग इन्वॉल्व है लेकिन वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, उसके लिए तो क्या है कि वो जो कागज और पर्ची है वो इज द मोड ऑफ द, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो कागज और पर्ची अगर मिसप्लेस हो गई देन इट कुड क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो हम क्या चाहते हैं कि हम हेल्थ केयर डोमेन में टेक्नोलॉजी को एक इंटेलिजेंट मैनर में यूज करना चाहते हैं। तो बेसिकली स्मार्ट हेल्थ केयर में क्या होता है कि स्मार्ट हेल्थ केयर में ये टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन इन्वॉल्व होते हैं जिससे हम पेशेंट की ट्रीटमेंट को सही टाइम पे कर सकते हैं और पेशेंट की कोई भी कंडीशन को हम मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे कि ट्रेडिशनल में क्या है कि एक नर्स बैठी रहती है, अभी नर्स को कुछ काम है, कहीं पे जाना पड़ा इमरजेंसी में, तो नर्स नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक है, वो पेशेंट की केयर कौन रखेगा? तो अभी हम टेक्नोलॉजी को इस तरीके से यूज करना चाहते हैं कि जिसमें वो बेसिकली पेशेंट की केयर रखे। अभी अगर हम टेक्नोलॉजी पे ये सॉल्यूशन छोड़ देंगे तो टेक्नोलॉजी की एक्यूरेसी भी अच्छी रहती है और वो कभी ठगती भी नहीं है, वो कंटिन्यूसली उस पेशेंट को पे नजर रख सकती है। ठीक है, और एक बार हमें पता चला कि ये क्रिटिकल कंडीशन है, उसमें मुझे ये स्टेप्स लेने हैं, तो वो स्टेप्स भी मैं इजीली ले सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली स्मार्ट हेल्थ केयर में क्या है कि कंटिन्यूस हेल्थ मॉनिटरिंग मींस यू नीड टू कंटिन्यूसली ऑब्जर्व द सिचुएशन ऑफ पेशेंट। आपको ड्रग डिलीवरी मैकेनिज्म बनानी है। दैट मींस कि अगर कुछ कंडीशन में मुझे पेशेंट्स को दवाई देनी है तो वो दवाई भी मैं प्रॉपर टाइम पे दे पाऊं जिससे मैं उस पर्टिकुलर डिजीज को और अच्छी तरीके से क्योर कर सकूं। ठीक है, अभी एक टेक्नोलॉजी जो बहुत पॉपुलर हुई है दैट इज आईओटी। ओके, सो आईओटी में हम क्या करते हैं कि उसमें बेसिकली जब भी हम मेडिकल में यूज करते हैं एट दैट टाइम वी डिफाइन देम एज अ इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग। ठीक है, और मेडिकल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका डेटा कलेक्ट होता है। ठीक है, आपके बॉडी के ऊपर कुछ सेंसर लगे होंगे, वो सेंसर से आपका डेटा कंटिन्यूसली कलेक्ट होगा और वो डेटा आपके क्लाउड पे स्टोर होगा। अभी जब भी आपके डॉक्टर को वो देखना होगा तो वो वहां पे जाके उसको देख पाएगा। ठीक है, अभी इसमें क्या है कि इसमें जो हमें एक डेडिकेटेडली नर्स स्टाफ की जरूरत थी उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कर रही है कि वो डेटा कैप्चर कर रही है और ऑटोमेटिकली वो डॉक्टर को भेज रही है और डॉक्टर उसको कंटिन्यूसली देख पा रहा है। अभी ये टेक्नोलॉजी बहुत कारगर है जिसमें हम क्रोनिकल डिसीज की बात करें। क्रोनिकल डिसीज वो डिसीज की कैटेगरी है कि जो हमारे अंदर फौरन नहीं आता। ठीक है, जैसे कि डायबिटीज है, डायबिटीज कैंसर है, वो आपको ऑल ऑफ सडन नहीं होगा, वो आपके शरीर के अंदर ग्रेजुअली डेवलप होता है। ठीक है, पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी वो डेवलप हो उसी टाइम पे अगर मुझे वो चीज की पता चल जाती है तो मैं उसी टाइम पे अगर उसकी कुछ प्रॉपर प्रिवेंटिव स्टेप लूंगा तो उसको मैं जल्दी क्योर कर पाऊंगा। ठीक है, कैंसर में भी ऐसा होता है कि कैंसर के डिफरेंट स्टेज होते हैं। कैंसर्स में अगर आपको अर्ली स्टेज में कुछ पता चल जाए तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से
क्योर कर सकते हो, पर अगर आपको उसको लेटर ऑन बाद में पता चला तो उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्रोनिकल डिसीज में हमें ट्रैकिंग और प्रिवेंट करना है तो हमें इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। अभी जब भी मैं टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन की बात करूंगा तो टेक्नोलॉजी में ऑफ कोर्स इंटरनेट आएगा। जब भी इंटरनेट को मैं इनकॉर्पोरेट करता हूं तो मैं उसको ई हेल्थ बोलता हूं। ठीक है, वो उसके लिए एक टर्म है कि जब भी मैं इंटरनेट टेक्नोलॉजी को अपने हेल्थ केयर में यूज करता हूं मैं उसको ई हेल्थ बोलता हूं। सिमिलरली जब मैं मोबाइल टेक्नोलॉजी को मैं अपने हेल्थ केयर सेक्शन में यूज करता हूं तो उसको मैं एम हेल्थ बोलता हूं, दैट इज अ मोबाइल हेल्थ। फिर टेलीमेडिसिन को भी यूज कर सकते हो। टेलीमेडिसिन में क्या होता है कि डॉक्टर और पेशेंट जरूरी नहीं एक दूसरे से आमने सामने मिले, वो अपने से मे बी जैसे कि हम अभी मिल रहे हैं वैसे मिल के चेक कर सकते हैं। फिर वो उस तरीके से मोबाइल के थ्रू भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। सो दिस वे दे कैन एक्चुअली डिस्कस द थिंग्स विथ ईच अदर। कनेक्टेड हेल्थ में क्या है कि जो हमारे स्टेक होल्डर है वो स्टेक होल्डर सारे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि दवाई की दुकान में जाता हूँ मुझे पर्ची दिखानी पड़ती है, जब मैं पैथोलॉजिकल लैब में जाता हूँ तब मुझे वो उसके लिए मीन्स पर्ची दिखानी पड़ती है। फिर अगर मुझे मेडिक्लेम क्लेम करना है तो मेडिकल ऑफिसर को मेरे पास आना पड़ता है, मैं फिजिकली एडमिट हुआ हूँ कि नहीं वो सारा देखना पड़ता है और उसके बाद मेरा मेडिक्लेम पास होता है। तो ये सारी चीजें हैं ना, अभी ये सारे अलग अलग लोग हैं जो अलग अलग से अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं कि एक टेक्नोलॉजी ऐसी सीमलेस बनाना चाहते हैं कि जिसमें सारे एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर कर सके। जैसे कि डॉक्टर ने अगर कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिखा तो वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे अगर स्टोर कर लेता है तो वो डिटेल्स मेरे को ऑटोमेटिकली मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध होगी, वो उसको देख सकता है। अगर मुझे कोई टेस्ट कराना है तो वो टेस्ट सेंटर में जब भी जाऊंगा तब वो उस डेटा को देख के मुझे प्रॉपर जो टेस्ट करने हैं वो कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें को हमें एक साथ लाना पड़ेगा, तो उसको हम एक कनेक्टेड हेल्थ या सी हेल्थ बोलते हैं। अभी इसमें टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बड़ा बड़ा योगदान है। मैं ई हेल्थ बोलूं, एम हेल्थ बोलूं या कनेक्टेड हेल्थ बोलूं। ठीक है, अभी बेसिकली एक और टर्म है जो बहुत वाइडली यूज हो रहा है कि साइबर फिजिकल सिस्टम फॉर अ हेल्थ केयर। ओके, दैट इज टर्म एज अ हेल्थ केयर साइबर फिजिकल सिस्टम। तो उसमें क्या होता है, सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स डेटा को कलेक्ट करते हैं, वो डेटा आपका स्टोर होता है, उस डेटा स्टोर डेटा पे हम कुछ इंटेलिजेंट एल्गोरिदम को अप्लाई करते हैं। वो इंटेलिजेंट एल्गोरिदम को अप्लाई करने के बाद उससे हम कुछ इंफॉर्मेशन डिराइव करने की ट्राई करते हैं और उस इंफॉर्मेशन से हम पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिफरेंट एल्गोरिदम उसका बहुत रोल है। और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके डेटा। जो डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूं वो अगर आपके हेल्थ केयर के रिलेटेड है तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्थ रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, EHR, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे स्मार्ट हेल्थ के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है कि डॉक्टर और पेशेंट एक दूसरे से दूर दूर से भी मिलके एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। दैट मीन कि डॉक्टर कैन प्रोवाइड अ प्रिस्क्रिप्शन रिमोटली टू अ पेशेंट। ठीक है, जिससे आपका एक एज अ पेशेंट डॉक्टर के पास जाने का टाइम और एफर्ट्स बच जाता है। ऑफ कोर्स जब मुझे कोई भी चीज की कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है, 24/7, जैसे कि आईसीयू में कोई पेशेंट है उसका मुझे कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना है तो उसके लिए डेडिकेटेड मैन पावर की जरूरत नहीं है, वो टेक्नोलॉजी से भी हो सकता है। फिर वो पर्टिकुलरली मॉनिटरिंग करके अगर कोई सीरियस सिचुएशन आती है जिसमें मुझे पेशेंट को प्रॉपरली पॉइंट ऑफ केयर देना है, दैट मीन उसको प्रिवेंटिव एक्शन या करेक्टिव एक्शन लेनी है, तो वो भी मैं स्मार्ट हेल्थ केयर से कर सकता हूँ। दूसरा कि मैं पेशेंट की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकता हूँ, उसके रियल टाइम डेटा को कलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसका मीनिंग ये है कि मैं
पेशेंट की अभी की स्थिति क्लियरली देख सकता हूं। मैं अगर पेशेंट के पास नहीं हूं फिर भी मुझे पेशेंट की हर एक चीज के बारे में, मुझे हेल्थ इंफॉर्मेशन के बारे में मुझे पता चल सकता है। अभी हम स्मार्ट हेल्थ केयर के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो बहुत सारे वेरिएबल प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम पहन सकते हैं। जैसे कि आपके कोई ग्लास के फॉर्म में होते हैं, आपके रिंग के फॉर्म में होते हैं, आपके ब्रेसलेट के फॉर्म में होते हैं। Sir, you are not audible. हाउ इट इज बीइंग म्यूटेड, बट हो सकता है किसी ने गलती से म्यूट कर दिया। ठीक है, शायद गलती से म्यूट हो गया था मेरा माइक। ठीक है, नो इश्यू, ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है। तो मैं इस स्लाइड में बात कर रहा था कि हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल डिवाइसेस है जो जिसको हम पहन सकते हैं। ठीक है, और वो पहनने से हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने बॉडी की मिल सकती है। ठीक है, कई बार मुझे कोई पर्टिकुलर डिसीज को एक्चुअली डायग्नोस करने के लिए ये सारे पैरामीटर को लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कैप्चर करना पड़ता है। ठीक है, वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट नहीं होता। ठीक है, जैसे कि हमारे कोविड में भी आप देखोगे तो वो कई बार कई पेशेंट को सिम्टम्स नहीं होते लेकिन फिर भी उसको कोविड होता है। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को खांसी बुखार है तो हम भी उसको कोविड मान लेते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, पर उसके लिए क्या है कि आपको लॉन्गर टाइम के लिए उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और फिर वो सारे सिम्टम्स एक साथ मैच होते हैं और कोविड टेस्ट से पॉजिटिव आता है, देन एंड देन वी कैन कंसीडर दैट पॉजिटिव। तो वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि शुरू के सिम्टम से हम उसको एग्जैक्टली जज नहीं कर पाते। तो वैसे ही हमारे स्मार्ट हेल्थ केयर में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो हमें हेल्प करता है कि ये डेटा को मैं लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कैप्चर कर पाऊं और फिर वो सारे डेटा को जान के खोज उसमें से कुछ निष्कर्ष निकाल पाऊं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट है, जैसे कि एप्पल ने एक वॉच बनाया है। ठीक है, जो वॉच को यूज करके आप दिन में कितना चलते हो, आपकी हार्ट बीट्स कितनी तेज चलती है, वो सारी चीजें आपको पता चल जाती है। ठीक है, ई हेल्थ जो मैंने आपको बताया कि जब भी आईसीटी टेक्नोलॉजी का आप यूज करोगे तब आप उसको ई हेल्थ कंसिडर करोगे। उसमें बेसिकली आप कहीं पे भी हो आप डॉक्टर से सीधे बात कर सकते हो, कंसीडरिंग कि आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध हो। ठीक है, तो वो आप इजीली आप कर सकते हो। एम हेल्थ जो मोबाइल हेल्थ है, हेलो, ओके, सो एम हेल्थ जो मोबाइल हेल्थ के लिए यूज होता है वो भी एक पॉपुलर तरीका है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, अगर आप देखो तो आज हमारे लैब रिपोर्ट्स, हमें जरूरी नहीं है कि हम लेबोरेटरी में जाके ले लें, वो हमें मोबाइल के थ्रू भी अपने लैब रिपोर्ट्स भेज देता है। ठीक है, तो वो लैब रिपोर्ट को मैं चेक करके, इवन वो लैब रिपोर्ट को मैं डायरेक्टली अपने मोबाइल से डॉक्टर को भेज सकता हूँ और डॉक्टर मुझे बता सकता है कि मेरे को एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है और मुझे कौन कौन से आगे के स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, इवन एसएमएस के जरिए भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, तो हम जो एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं आरोग्य सेतु, वो आरोग्य सेतु भी एक हमारे मोबाइल हेल्थ का ही एक पार्ट है ना। मोबाइल हेल्थ के मोबाइल हेल्थ में बेसिकली एक अच्छा सॉल्यूशन इसलिए माना जाता है कि हम मानते हैं कि मोबाइल को हम कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। ठीक है, उसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं और हम मानते हैं कि हमारे इंडिया में भी
60 to 70% जो पॉपुलेशन है उसके पास मोबाइल अवेलेबल है, तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर कन्वे करना चाहते हैं तो वो इजीली कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली मोबाइल हेल्थ की यूज जो स्टार्ट हुआ था वो आज से 7-8 साल पहले, जब अफ्रीकन कंट्री में इबोला करके एक रोग था, जो भी एक हेल्थ क्राइसिस होने आइडेंटिफाई किया था। तो उस टाइम पे अफ्रीकन कंट्री में वहां पे लोगों को सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ये एप्लीकेशन को यूज किया गया था, और तब से ये मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन हमारे हेल्थ केयर डोमेन में बहुत ही अच्छी तरीके से यूज हो रही है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि आप अपने रिपोर्ट कलेक्ट कर सकते हो, आप अपने मेडिकल एलर्ट्स फाइंड आउट कर सकते हो, इवन डॉक्टर कैन प्रोवाइड ई प्रिस्क्रिप्शन, सो दैट कुड बी पॉसिबल। कनेक्टेड हेल्थ जो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे हेल्थ केयर में, इसमें क्या चाहता हूं मैं, हॉस्पिटल, क्लिनिक, पेशेंट, फार्मास्यूटिकल कंपनी, लेबोरेटरी, योर मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें। अभी एक्चुअली में क्या होता है कि अगर मैं हॉस्पिटलाइज हूं और मुझे मेडिक्लेम को यूज करना है, ठीक है, तो क्या होता है कि मैं मेडिक्लेम ऑफिसर को इन्फॉर्म करता हूं, वो मेरे हॉस्पिटल में आता है, उसके लिए कुछ ऐसा रूल है कि मुझे 1 दिन तक हॉस्पिटल में मिनिमम रहना पड़ेगा, जिसमें वो ऑफिसर आएगा, वो वेरीफाई करेगा और फिर मेरा मेडिक्लेम पास होता है। अभी हम क्या चाहते हैं कि उसको बेसिकली आने की जरूरत नहीं है। मैं अगर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूं तो वो इंफॉर्मेशन उसको चली जानी चाहिए। अगर वो मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है कि नहीं वो देखना चाहता है तो उसके लिए फिजिकल आने की जरूरत नहीं है, वो बेसिकली हॉस्पिटल की कोई भी एक टेक्नोलॉजी से यूज करके मेरी सिचुएशन को देख सकता है। ठीक है, और बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन है, अगर वो इंफॉर्मेशन डॉक्टर ही आपके मीन्स सिस्टम में अपलोड कर रहा है तो बेसिकली हमें मीन्स जो भी मेडिकल ऑफिसर, जो भी मीन्स मेडिक्लेम ऑफिसर है, वो उसको मान लेना चाहिए। ठीक है, अभी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है। ठीक है, अभी आपको ध्यान में हो कि 15 अगस्त, ये नहीं लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर में जब प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को अपना संबोधन दिया था, तब उन्होंने बोला था कि हम हर एक भारतीय को एक डिजिटल हेल्थ आईडी देना चाहते हैं। ठीक है, वो हेल्थ आईडी से क्या होगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड के साथ भी वो लिंक हो सकता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि हर एक पेशेंट के लिए एक आईडी होगा। वो आईडी से क्या होगा कि उसकी सारी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, और जब भी किसी को एक्सेस करना है तो वो हेल्थ आईडी को यूज करके वो इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है। तो जैसे कि अगर मैं हॉस्पिटल में दाखिल हुआ हूं और वो हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, अगर मैंने अपने मेडिक्लेम ऑफिसर को बता दिया, तो क्या होगा कि वो सिंपली वो सिस्टम में जाके वो हेल्थ आईडी से वो इंफॉर्मेशन निकाल सकता है और वो चेक कर सकता है कि मैं सचमुच में दाखिल हुआ या नहीं। ठीक है, और मेरी कौन कौन सी ट्रीटमेंट अभी चल रही है, और इसके हिसाब से मेरा मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पास होगा। अभी इस तरह की टेक्नोलॉजी अमेरिका में लिमिटेड रूप से यूज हो रही है, यूरोपियन कंट्री में भी ये पॉपुलर है, हमारे इंडिया में अभी चालू नहीं हुई है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 2-3 साल में हमारे देश में भी ये एक सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, जिसकी वजह से हम इजीली अपनी चीजों को हेल्थ केयर के रिलेटेड मैनेज कर पाएंगे। सो बेसिकली यही रोल है कि कनेक्टेड हेल्थ में सारे लोग एक साथ अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, तो एज अ पेशेंट या फिर एज अ पेशेंट का केयर टेकर, ठीक है, मेरे साथ जो होता है उसको भी बहुत चिंता होती है मेरी हेल्थ की। ठीक है, तो उस टाइम पे उनको ये सारी चीजों की ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ पेशेंट को कैसे अच्छी तरीके से उसको ट्रीट कर पाए और कैसे अच्छी तरीके से उसके माहौल अच्छा बना सके, वही हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, तो बेसिकली हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं जिसमें हम अपनी डे टू डे लाइफ में, जैसे कि मैं अपना रूटीन का काम कर रहा हूँ कि मैं भाई अभी ऑफिस जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, जहां पे जा रहा हूँ, सो वो मैं उसी टाइम पे मेरे अपने सारे हेल्थ पैरामीटर को कंसीडर कर लूँ। अभी तो क्या है कि अगर मैं कुछ क्रिटिकल कंडीशन में आया तो मुझे आईसीयू में भर्ती होना पड़ता है, वहां पे मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, और फिर मैं अपना
मीन्स अपना जो रूटीन काम है उसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ। इवन मेरा नहीं, मेरे साथ जो मेरे फैमिली मेंबर है उसके लिए भी ये एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, तो अभी टेक्नोलॉजी का सॉल्यूशन करके हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई पेशेंट का मुझे सारा डेटा अगर कैप्चर करना है और उसको कहीं पे स्टोर करना है और उसको डॉक्टर के साथ शेयर करना है, तो हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज करके ये बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने अपने पार्ट का एक पर्टिकुलर सेक्शन खत्म किया है, अगला सेक्शन में स्टार्ट करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई डाउट है जो मैंने अभी तक कवर किया, तो मैं अभी आपको आपके डाउट को क्लियर करना चाहता हूं। ठीक है, Yeah, students, Dr. Joshi has discussed all about infrastructure, what the infrastructure we are required to develop. जो हेल्थ केयर सिस्टम में टेक्नोलॉजी यूज करना है, तो हमें क्या क्या चीजें जाननी चाहिए और क्या क्या चीजें जो अवेलेबल है जिसको हम यूज कर सकते हैं। भले ही हम अभी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में सोच सकते हैं कि कैसे हम इसको यूज कर पाए। ठीक है, आने वाले समय में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, किस तरह से एक दूसरा एक पेशेंट उसका डाटा जो है कहाँ कहाँ अवेलेबल होगा, कैसे फैसिलिटीज इंटरकनेक्टेड होंगी, तो ये सारा इनसे हम समझ सकते हैं कि आगे हम किस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। एंड दिस इज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बाय डॉक्टर जोशी। और आप स्टूडेंट्स अगर कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या आपका कोई आइडिया हो तो आप खुल के यहाँ पे डिस्कस कीजिए। यू कैन स्विच ऑन योर माइक्रोफोन एंड योर कैमरा एंड प्लीज डिस्कस विद डॉक्टर जोशी। धन्यवाद सर। ओके, तो ठीक है, अभी लग रहा है कि मीन्स जो भी बताया है उसको आप ध्यान से समझ पा रहे हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको मीन्स एक केस स्टडी के रूप में डायबिटीज के बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है, डायबिटीज का इसीलिए कि हमने जो कंपनी स्टार्ट की है उसमें हम बेसिकली डायबिटीज पेशेंट के लिए ही फोकस कर रहे हैं और उसके रिलेटेड हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हमने बताया है। ठीक है, तो जब भी आपको डायबिटीज होता है या कोई भी डायबिटीज पेशेंट है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसको अपने ग्लूकोज की वैल्यू को जानना। ठीक है, अगर आपके घर में मीन्स कोई भी डायबिटीज से अगर परेशान है, तो आप देखोगे कि वो अपने बॉडी में से कोई भी तरीके से या तो लेबोरेटरी में जाके अपने ग्लूकोज की वैल्यू फाइंड आउट करता है, या फिर अभी एक घर बैठे भी ग्लूकोज मेजरमेंट करने के आपके डिवाइस आते हैं जिसमें आपको ब्लड कलेक्ट करना होता है, और वो स्ट्रिप में रखोगे तो वो स्ट्रिप को अगर आप डिवाइस में रखोगे तो वो डिवाइस आपका ब्लड ग्लूकोज में की वैल्यू बता देगा। ठीक है, तो डायबिटीज पेशेंट को अपने ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू जानना बहुत जरूरी। अभी दूसरी एक चीज कि मेरे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू पूरे दिन में हर एक टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि अगर मैं सुबह अगर उठा, अगर मैं चेक करूंगा तो मेरी ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू डिफरेंट होगी। अगर मैं खाना खाता हूं उसके बाद चेक करूंगा तो उसकी डिफरेंट होगी। अगर मैं खाने के 4 घंटे के बाद अपना ब्लड ग्लूकोज चेक करूंगा और फिर मीन्स मेजर करूंगा तो वो वैल्यू अलग होगी। तो मेरे लिए ये सारी चीजें जानने की बहुत जरूरी है। ठीक है, सही तरीका ये है कि मैं अपने बॉडी के ब्लड ग्लूकोज में जो वेरिएशन आ रहा है वो वेरिएशन को ज्यादा नहीं होने दूं। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा, जो हम यूजुअली नंबर से बताते हैं कि अगर आप एक हेल्थी पर्सन हो, तो हेल्थी पर्सन के लिए आपकी बॉडी में आपने अगर खाना नहीं खाया तो आपकी बॉडी में आपकी ग्लूकोज की वैल्यू 80 से लेके 120 के बीच में रहती है। जब भी आपने खाना नहीं किया, जब आप सुबह बिफोर फास्टिंग आपका ग्लूकोज मेजर करते हैं, जब आपने खाना खाया है उसके बाद आपकी ग्लूकोज की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, अगर आप हेल्थी पर्सन हो तो आपकी बॉडी में वो ग्लूकोज की वैल्यू 110 से लेके 115 तक वेरी हो सकती है। ठीक है, अगर आपकी बॉडी में किसी भी समय ग्लूकोज की वैल्यू 150 या उससे ज्यादा है तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं। ठीक है,
तो आपकी बॉडी में ये डायबिटीज की आपका ग्लूकोज की वैल्यू क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप डायबिटीज पेशेंट है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी ग्लूकोज की वैल्यू इससे ऊपर नहीं जाए। तो हमारे पूरी दुनिया में 422 मिलियन पीपल आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, और ये जो डेटा है वो 2019 में हु के वेबसाइट से मैंने कलेक्ट किया है। अभी जब भी आपको डायबिटीज होता है ना, तब आपको अपने खाने पीने में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप देखोगे तो जब भी आपको डायबिटीज, अगर कोई डायबिटीज पेशेंट हो तो वो आपके मीन्स जो मीठी चीजें होती है ना, जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, उसको नहीं खाता, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है उसको कुछ हेल्प कर पाए, उस उद्देश्य से हमने एक ग्लूकोमीटर बनाया, ठीक है। अभी आप देखोगे कि ये डायबिटीज पीपल की वैल्यू, इफ यू लुक एट दिस देन दैट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग। अगर आप देखोगे कि अगर मैं प्रोजेक्ट करूंगा 2045 में, तो ये डायबिटीज मरीजों की संख्या है 700 मिलियन हो जाएगी। तो इसका मार्केट तो आने वाले दिनों में भी बहुत है, ठीक है। तो बेसिकली मैं डायबिटीज की बात करूं तो डायबिटीज 3 तरीके से होते हैं, ठीक है। एक टाइप 1 डायबिटीज, एक टाइप 2 डायबिटीज और एक गेस्टेशनल डायबिटीज। ये जो गेस्टेशनल डायबिटीज होता है वो आपके प्रेग्नेंट वुमन में होता है टेम्पररी। जब भी वो वुमन आपकी प्रेगनेंसी पीरियड में होती है तब उसको आपकी ग्लूकोज की वैल्यू हाई ऑब्जर्व होती है, ठीक है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज वो आपके नॉर्मल कॉमन डायबिटीज है, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि आपकी बॉडी जो होती है ना, उसकी बॉडी में आपका इंसुलिन जनरेट ही नहीं होता। अभी आपको यह समझने की जरूरत है कि आपकी जो बॉडी है ना, उसके लिए ग्लूकोज जरूरी है। अगर आपका बॉडी में ग्लूकोज नहीं है ना, तो आपको एनर्जी नहीं आएगी। आपके ग्लूकोज की वैल्यू को आपको एक पर्टिकुलर रेंज में कंट्रोल करना है। जैसे कि मैंने बताया 80 to 150 इज अ रेंज इन विच आपका ब्लड ग्लूकोज होना चाहिए। 150 से ऊपर हुआ तो भी प्रॉब्लम है, और अगर 80 से कम चला गया तो भी ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको तो ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए तो ग्लूकोज चाहोगे। अगर आप देखोगे तो अगर आप अभी अस्पताल में भर्ती होते हो तो सबसे पहली चीज डॉक्टर क्या करते हैं, ग्लूकोज की बॉटल ही चलाते हैं, ठीक है। तो वो इस वजह से कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज तो चाहिए, और वो ग्लूकोज जो हमें है ना, वो हम जो रोज बरोज में खाना खाते हैं ना, उससे जनरेट होता है। आपकी बॉडी में पैंक्रियास है, ठीक है। वो पैंक्रियास में अल्फा और बीटा सेल है। तो जब भी आप कोई चीज खाते हो तो उस चीज खाने से आपके अल्फा सेल ग्लूकोगोन जनरेट करते हैं, और जो ग्लूकोगोन है वो बेसिकली आप मान लो कि वो ग्लूकोज का एक पार्टिकल है। और फिर जो बीटा सेल है, वो बीटा सेल उसके इक्विवेलेंट इंसुलिन जनरेट करता है, ठीक है। तो अगर आपका ग्लूकोज की वैल्यू ज्यादा है तो जो इंसुलिन जनरेट होता है ना, वो उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है, ठीक है। अभी जब भी आप टाइप 1 डायबिटीज में हो ना, तब आपकी बॉडी में वो जो इंसुलिन है ना, वो इंसुलिन जनरेट नहीं हो पाता। आप जब खाना खाते हो तो ग्लूकोज तो जनरेट हो जाता है, लेकिन आपके बॉडी में जो पैंक्रियास के बीटा सेल है वो आपके इंसुलिन को जनरेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका ग्लूकोज की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज में आपका इंसुलिन जनरेट नहीं होता। इसकी वजह से जो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट है ना, वो आपके इंजेक्शन लेते हैं। अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ओल्ड एज पीपल खाना खाने से पहले एक इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। उसका पर्पस यही है कि जब भी मैं खाना खाऊंगा तो मेरी बॉडी में ग्लूकोज जनरेट होगा। अभी जो मैंने इंसुलिन लिया है, वो इंसुलिन वो जो ग्लूकोज जनरेट होगा उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से मेरी ग्लूकोज की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ेगी नहीं, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि आपके पैंक्रियास में इंसुलिन जनरेट तो हो रहा है, लेकिन वो इंसुलिन इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो ग्लूकोज के जो एक्सिन्स ग्लूकोगॉन हार्मोन है उसको न्यूट्रलाइज कर पाए। तो इस केस में क्या होता है कि इंसुलिन जनरेट होता है, लेकिन बहुत जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा में नहीं होता। तो उसकी वजह से क्या करते हैं कि डॉक्टर आपको गोली लिखते हैं, वो गोली आपको लेना है, और वो गोली से आपका इंसुलिन कंट्रोल होता है। तो यूजुअली आप देखोगे कि डायबिटीज के पेशेंट ही है वही एक है जो खाने से पहले
कोई दवाई लेते हैं, वरना तो हम यूजुअली यही देखते हैं कि खाना खाने के बाद दवाई लेनी चाहिए, लेकिन बेसिकली हम खाना खाने से पहले इंसुलिन की वो टैबलेट या इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं, जिससे मेरी बॉडी में जो खाना खाने से ग्लूकोज जनरेट हो उसको मैं न्यूट्रलाइज कर पाऊं। ठीक है, तो अगर मैं डायबिटीज की बात करूं तो डायबिटीज जो है ना वो बहुत सारे मेरे शरीर में रोग जो आ सकते हैं उसका रूट कॉज है। डायबिटीज को कैसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि किसी का वेट लॉस ड्रास्टिकली हो जाता है, किसी को बहुत जल्दी भूख लगती है, किसी को बहुत जल्दी पेशाब लगता है, तो ये सारे जो सिम्टम्स है ना उसकी वजह से आपके डायबिटीज हो सकता है। अभी डायबिटीज को अगर मैं क्योर ना करूं ना तो उसके वजह से बाकी के रोग भी हो सकते हैं, जैसे कि मुझे हार्ट अटैक भी डायबिटीज, अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज कंटिन्यूसली बहुत लॉन्गर टाइम तक हाई रहेगा तो आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है, आपकी नर्व सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है, आपको किडनी के डिसीज भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डायबिटीज हुआ है तो आपका मरने की संभावना 50% बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में भी हम देख सकते हैं कि 70 मिलियन पीपल डायबिटीज से मींस ग्रस्त है। तो हमने बेसिकली क्या सोचा कि हम ये जो लार्ज कम्युनिटी है उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाए। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि डायबिटीज की वजह से क्या क्या और चीजें हो सकती है। ठीक है, तो हमने क्या सोचा कि हम इन कम्युनिटी को कैसे हेल्प कर पाए। तो जैसे कि मैंने बताया कि डायबिटीज के लिए मुझे ग्लूकोज मेजरमेंट करना जरूरी है। अभी ग्लूकोज मेजरमेंट करने के लिए अगर मैं लेबोरेटरी में जाऊं या फिर मैं अपने घर पे ग्लूकोज मेजर करूं तो मुझे क्या है कि अपनी बॉडी से ब्लड निकालना पड़ता है। अगर मैं दिन में अपने बॉडी में 4 बार ब्लड ग्लूकोज मेजर करना चाहता हूं तो वो हर एक बार मुझे अपने बॉडी में से ब्लड ग्लूकोज निकालना पड़ेगा, और वो ब्लड निकालने के बाद वो ब्लड ग्लूकोज को मेजर करूंगा। ठीक है, बेसिकली ब्लड निकालना पड़ेगा। अभी आप देखो कि ये बीमारी जो है ना वो आपके जैसे जैसे एज बढ़ती है ना 60-70 उसमें आने के चांसेस ज्यादा है। अभी उस टाइम पे अगर आप किसी की बॉडी में बार बार सुई से आप खून निकालने की ट्राई करोगे तो वो बहुत मुश्किलें होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आप हर बार अपने बॉडी के ब्लड ग्लूकोज को मेजर नहीं कर पाते। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई चीज को हम लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ट्रैक नहीं करेंगे तो हमें उसके लिए सटीक तरीके से पता नहीं चलेगा। तो हमने क्या सोचा कि क्या हम कुछ ऐसा चीज डेवलप कर सकते हैं कि जिसमें बॉडी में से कुछ भी खून निकाले बिना हम बॉडी में से ब्लड ग्लूकोज मेजर कर पाए। हमें तो क्या है कि ब्लड में जो ग्लूकोज कंपोनेंट है उसको मेजर करना है। तो उसके लिए हमने नॉन इन्वेसिव ग्लूकोमीटर डिवाइस किया। नॉन इन्वेसिव का मतलब कि मैं बॉडी के बाहर के सरफेस से ही ग्लूकोज की वैल्यू को मेजर करूंगा। मैं बॉडी में से खून निकालने की या बॉडी में से कुछ भी पिंच नहीं करूंगा जिससे मेरी बॉडी को हार्म हो। अभी नॉन इन्वेसिव तरीके से अगर मैं उसको कंटिन्यूसली उसको मेजर कर पाऊं तो मेरे लिए अच्छा है। मुझे पता चलेगा कि दिन में क्या चीज है या फिर एग्जैक्टली मैं कौन सा खाना खाता हूं जिसकी वजह से मेरी ग्लूकोज की वैल्यू इतनी बढ़ रही है। तो अगली बार मैं वो खाने में और अगर ग्लूकोज की वैल्यू बढ़ रही है तो मैं उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराने में मुझे सहायता मिलेगी। तो नॉन इन्वेसिव ग्लूकोमीटर हमने डेवलप किया है। तो बेसिकली ग्लूकोमीटर डेवलप करने के लिए अगर मैं ग्लूकोज की बात करूंगा तो ग्लूकोज में आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो वो जो बॉन्ड होता है ना वो आपके वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, जब भी उसको एनर्जी मिलती है। तो हमने क्या किया है कि हमने लाइट सोर्स को यूज किया है। ठीक है, लाइट सोर्स दैट मीन्स कि वी आर इंसिडेटिंग अ लाइट टू अ बॉडी पार्ट। अभी वो लाइट जो ऑप्टिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट है, अभी लाइट सोर्स कौन सा लेना है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई भी ऑप्टिकल के सोर्स की बात करोगे तो उसकी एक वेवलेंथ होती है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से सोर्स को यूज करें जिससे हम बॉडी में से ग्लूकोज मेजर कर पाए। तो उसके लिए हमने क्या है कि हमारे यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया। तो हमने क्या किया
कि हमने सिंपल जो आपका ग्लूकोज का पाउडर आता है ना, जो आप यूज करते हो, ठीक है, तो वो ग्लूकोज का पाउडर लिया, फिर आपके ग्लूकोज की बोतल आती है जिसमें आपका ग्लूकोज होता है, ठीक है, तो पानी में जो ग्लूकोज मिलाते हो उससे उससे जो फॉर्म होता है वही आपके ग्लूकोज के बोतल में होता है, ठीक है। तो वो ग्लूकोज की बोतल से हमने वाटर का सैंपल लिया, सिंपल वाटर का सैंपल लिया, और उससे हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजर की। तो उससे हमें क्या मिलेगा कि एक प्लेन वाटर है, प्लेन वाटर में तो ग्लूकोज है नहीं, पर अगर वो वाटर में मैंने ग्लूकोज पार्टिकल मिलाया और उसके बाद अगर मैंने स्पेक्ट्रा मेजर किया, तो ऑब्वियसली स्पेक्ट्रम में मुझे पता चलेगा कि ग्लूकोज डालने से मेरे कहां पे वो स्पेक्ट्रम में मुझे वो एक सेंसिटिविटी मिलती है, मुझे वो पिक मिलेगा स्पेक्ट्रम में, ठीक है। तो वो हमने ऑब्जर्व किया और वो हमने देखा, तो हमें पता चला कि 940 और 1300 ये जो दोनों है, ये दोनों जगह पे आपके ग्लूकोज बॉटल में जो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन है उससे आपको पीक मिलता है। तो हमने वो सोर्स को यूज किया अपने डिवाइसेस में नॉन इन्वेसिव ग्लूकोमीटर डेवलप करने के लिए। तो हमारा जो डिवाइस है उसमें हमने 2 वेवलेंट यूज किए, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 जगह पे पिक मिल रहे हैं, ठीक है, तो 2 वेवलेंट को यूज किया। अभी जब भी आप अपने कोई भी लाइट सोर्स को कोई भी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट करते हो, तो क्या करता है कि लाइट उससे रिफ्लेक्ट होगी या फिर लाइट उस पार्टिकल में एब्सॉर्ब होगी, ठीक है, लाइट या तो एब्सॉर्ब होगी या तो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। अभी हमने दोनों चीजों को इंटीग्रेट किया और इसकी वजह से हमने है ना बेसिकली 3 फिंगर को यूज किया। 3 फिंगर में क्या करेंगे कि 2 वेवलेंथ के 2 कॉम्बिनेशन हो गए, क्योंकि एक में रिफ्लेक्टेंस होगा, एक में एब्सॉर्प्शन होगा, और ये 2 वेवलेंथ की दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज किया। फिर हमने देखा कि 940 में आपका रिफ्लेक्टन और एब्सॉर्प्शन जो है वो आपका सही से काम कर रहा है, लेकिन 1300 जो दूसरी वेवलेंथ है उसमें आपका रिफ्लेक्टेंस का कोई रोल नहीं है, उसमें आपका एब्जॉर्प्शन ही हो रहा है ग्लूकोज में। तो वो हमने एक्सपेरिमेंट से आइडेंटिफाई किया। हमारे एमआरसी में स्पेक्ट्रोमीटर है जिसमें हमें अलग अलग सैंपल लिए और उस सैंपल से हमने ऑब्जर्व किया कि किस पर्टिकुलर सोर्स को किस पर्टिकुलर वे में यूज करने से हम बेसिकली अपने ग्लूकोमीटर से एक्यूरेट रीडिंग ले सकते हैं। तो उसकी वजह से हमने फिर पीसीबी बनाई। अगर आप ये देख सकते हो तो यहाँ पे ये हमारा एक पीसीबी, एक तो आर्डिनो बोर्ड है, आर्डिनो बोर्ड का हम प्रोसेसिंग में यूज कर रहे हैं कि जो डेटा वैल्यू आएगी वो डेटा वैल्यू में कुछ प्रोसेसिंग करेंगे। और ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है जहाँ पे उंगली रखी हुई है वो बेसिकली हमारा एक्वाजिशन मॉड्यूल है। वो एक्वाजिशन मॉड्यूल से हम वैल्यूज एक्वायर्ड करेंगे और फिर उस वैल्यू को यूज करके आपके बॉडी के ब्लड ग्लूकोज को मेजर करेंगे। अभी आप जब भी लाइट सोर्स जो आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करेगा, वो लाइट सोर्स से अगर मैं लाइट इंसिडेंट करूंगा तो वो लाइट आपके जो रिवर्स एंड पे जो भी मैं इंसिडेंट करूंगा उसके डिटेक्टर एंड पे मैं उसको मेजर करूंगा। अभी वो जो लाइट की इंटेंसिटी है वो वेरी करेगी। वो किस वजह से वेरी करेगी? अगर आपकी बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज है तो वो ग्लूकोज की वजह से आपकी जो लाइट की इंटेंसिटी आपको जो रिसीवर एंड पे मिलेगी उसमें चेंज आएगा। और हमने ये देखा कि आपके बॉडी के ब्लड ग्लूकोज में जितना वेरिएशन होता है ना उसके हिसाब से भी वो इंटेंसिटी वेरी होती है। तो अल्टीमेटली आप वो जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको मेजर करके आपके बॉडी के ब्लड ग्लूकोज को मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया। तो बेसिकली हम नॉन इन्वेसिव ग्लूकोमीटर बना रहे हैं कि जिसमें आपके बॉडी में से आपको कुछ खून निकालने की जरूरत नहीं है। आप जब तक अपनी उंगली पे वो लाइट को इंसिडेंट करोगे आपको वो मीन्स ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू लेता रहेगा। अच्छा, अभी जो जो वैल्यूज है ना वो वैल्यू इतनी सिंपल तरीके से नहीं होती कि जो डायरेक्टली ग्लूकोज की वैल्यू को मेजर करे। वो जो वैल्यूज है ना वो वैल्यूज को आपको प्रोसेस करना पड़ेगा और उस प्रोसेस करने के बाद आपको उसको बेसिकली एक वैल्यू को प्रोसेस मशीन लर्निंग मॉडल से हमें प्रोसेस करना पड़ता है और उसके बाद वो ग्लूकोज की वैल्यू को मेजर करती है। और दूसरी चीज हमने क्या की, ये बेसिकली हमारा एक ओवरव्यू है कि आप आपके 3 फिंगर पे कैसे आप पहन के उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अभी दूसरी चीज हमने क्या की कि इसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करने के लिए जो भी वैल्यू
आपके सेंसर पे आ रही है डिटेक्टर एंड, वो वैल्यू को हमने क्लाउड पे स्टोर कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से वो वैल्यू स्टोर होती रहेगी और वहां से मैं ग्लूकोज की वैल्यू निकालता रहूंगा। इसकी वजह से मुझे पता चला गया कि मेरे पूरे दिन में किस टाइम पे मेरी ग्लूकोज की वैल्यू हाई जा रही है, ठीक है। और जब भी हाई जाएगी तब क्या किया कि हमने कुछ सिस्टम बना दिया कि जिसकी वजह से आपको ऑटोमेटिकली उसका पता चल जाए, ठीक है, क्योंकि मैं तो डे टू डे रूटीन में होऊंगा, मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, मैं तो शायद ध्यान भी नहीं दूंगा जब मैं अपने काम में होऊंगा। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ मैकेनिज्म बना सकते हैं कि जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा आपकी ग्लूकोज की वैल्यू अभी हाई गई है। जब आपकी ग्लूकोज की वैल्यू नॉर्मल है तब तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब हाई गई है तब आपको चिंता करने की जरूरत है और तभी आपको कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने हैं। अभी जब भी आप कोई भी ग्लूकोज की मेजरमेंट की डिवाइस बनाओगे ना, तो आपको क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपकी डिवाइस जो है वो अच्छा काम कर रही है, उसकी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, ठीक है। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए एक क्लार्क एरर ग्रिड एनालिसिस है, ठीक है। उसमें बेसिकली क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट जोन है। वो बेसिकली क्या है कि आपका रेफरेंस ब्लड ग्लूकोज और आपका एस्टिमेटेड ब्लड ग्लूकोज। अभी रेफरेंस ब्लड ग्लूकोज क्या है कि आपके बॉडी में जो एक्चुअल ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू है वो आपको बताएगा, और एस्टिमेटेड दैट मींस कि जो हमने डिवाइस बनाया है उससे जो हमारा वैल्यू प्रिडिक्ट हो रहा है वो वैल्यू, अभी वो वैल्यू कितना सही है वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया कि हमने जो नॉर्मल ग्लूकोमीटर है, ठीक है, जो मार्केट में मिलता है, जो आपका एक्यू चेक का होता है जिसमें आप पिंच करके बॉडी से ब्लड ग्लूकोज निकाल पाओ, तो उसको हमने रेफरेंस मान लिया क्योंकि ज्यादातर लोग वही यूज करते हैं, ठीक है। तो वो ब्लड ग्लूकोज से जो वैल्यू आ रही है उसके साथ उसी टाइम पे हमने अपने डिवाइस से मेजर करके जो वैल्यू आई उसको कंपेयर किया और उसको हमने ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो क्लार्क एरर एनालिसिस ऐसा बोल रहा है कि अगर आपके सारे रीडिंग, ठीक है, ए जोन में आ रहे हैं, दैट मींस कि वो लीनियर कर्व है कि आपने जो प्रिडिक्ट किया और आपका जो रेफरेंस है वो एग्जैक्टली सटीक है, तो आपका लीनियर कर्व आएगा, तो वो आपका जोन ए में आएगा। तो अगर जोन ए में आपकी वैल्यू आ रही है तो वो आपका क्लिनिकली यूजफुल है, आप उसको क्लिनिकली यूज कर सकते हो। अगर बी में आ रहा है तो आपको कुछ काम करने की जरूरत है जिसकी वजह से वो जोन ए में आए। बाकी के सी डी ई में वो बेसिकली डिवाइस को आप कोई भी तरीके से यूज कर ही नहीं सकते, आपको उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा उसको करेक्ट करने के बारे में, ठीक है। तो हमने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे सारे रीडिंग जोन ए में आ रहे हैं, और जिसकी वजह से ये बता पा रहे हैं कि हमारा ये पर्टिकुलर डिवाइस क्लिनिकल यूज के लिए यूजफुल है, ठीक है। अभी मैं ग्लूकोमीटर की बात करूंगा। अभी जब भी हम ग्लूकोज मेजरमेंट की बात करेंगे तो हम कैपिलरी ग्लूकोज और सीरम ग्लूकोज की बात करते हैं, ठीक है। अभी वो क्या है वो थोड़ा समझने की जरूरत है कि जब भी मैं लेबोरेटरी में जाता हूं तब आप देखोगे कि ग्लूकोज मेजरमेंट कैसे होता है, और जब भी मैं घर से डिवाइस से मेजर करता हूं उन दोनों में भी फर्क है। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर आपको बोलेगा कि आप लेबोरेटरी में जाके ग्लूकोज को मेजर करो, हर रोज नहीं तो एटलीस्ट 6 महीने में एक बार अपने ग्लूकोज को लेबोरेटरी में जाके मेजर करो। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि लेबोरेटरी में जो मेजर होता है ना वो आपका सीरम ग्लूकोज होता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि जब भी आप अपना ब्लड सैंपल लेते हो ना तो वो एक टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, और वो टेस्ट ट्यूब को एक पर्टिकुलर सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है जिसमें कुछ टेम्परेचर पे वो पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब का सैंपल रखा जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपका सीरम और प्लाज्मा, आप अगर मींस उसको ध्यान से देखोगे अगर आप कभी भी लेबोरेटरी में जाओ तो वो टेम्परेचर कुछ 5 मिनट तक देने के बाद क्या होता है कि आपका एक जो आपके ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, तो जो भारी भारी कंपोनेंट होते हैं ना वो बेसिकली टेस्ट ट्यूब में नीचे आ जाते हैं, ठीक है, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, और उसके ऊपर का जो पानी में डिजोल्व फॉर्म में जो रहता है ना उसको हम बेसिकली सीरम बोलते हैं। और आपका जो ग्लूकोज पार्टिकल है ना वो आपके सीरम के बेसिकली जो पार्ट है ना उसमें से मेजर किया जाता है, और उसमें से मेजर करो तो ही वो एक्यूरेट मेजर देता है। हम जो घर पे यूज करते हैं ना उसमें तो ब्लड में बहुत सारी इम्प्योरिटी भी होती है, तो उससे जो ग्लूकोज मेजर होता है ना वो इतना सटीक नहीं होता, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि हमने अपने डिवाइस को इस तरीके से बनाया है कि हमारा डिवाइस बेसिकली जो सीरम ग्लूकोज है उसको मेजर करता है, ठीक है।
जो नॉर्मल डिवाइसेस है वो आपके कैपिलरी को मेजर करते हैं, और मैंने जैसे बताया कि हमारा सीरम ग्लूकोज है वो और सटीक है। तो ये हमारा थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, शायद इस मोमेंट पे शायद इतना आपके लिए जरूरी भी नहीं है कि इतना इन डेप्थ हम जाए, ठीक है, क्योंकि टाइम का भी कंस्टेंट है। पर अगर आप जानना चाहे तो मैंने पेपर कुछ पब्लिश किए, उसमें आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोटोटाइपिंग है जिसमें हम 3 उंगलियां लगा के इसको हम बेसिकली एक्वाजिशन मॉड्यूल से यूज करते हैं, और फिर आर्डिनो बोर्ड से वो वैल्यू को हम कंप्यूटर में प्लग करते हैं, और कंप्यूटर में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम चलता है और वहां पे आपको वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है। तो ये इसके कुछ स्टेप्स हैं। हमने एक्सपेरिमेंट जो किए वो एक्सपेरिमेंट में डायबिटिक, प्री डायबिटिक और हेल्थी पेशेंट को इंक्लूड किया, और वो इंक्लूड करके हमने बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया, और उससे हमें पता चला कि हमारा कितना अच्छा है, ठीक है। तो हमने कुछ वैल्यूज भी निकाली थी, मैं डायरेक्टली उसके ऊपर जाता हूँ। हमने बेसिकली 113 सैंपल मीन्स यूज किए हैं, और मेल फीमेल के अलग अलग कैटेगरी के हमने यूज किए हैं, और उससे हमने एक कंपैरिजन टेबल बनाया था कि ये कंपैरिजन टेबल में ये बताया है कि हमारी जो आर वैल्यू है बेसिकली जो वैल्यू को कितनी प्रिडिक्ट, कितनी एक्यूरेट है वो बताती है। तो वो ऑलमोस्ट 0.97 है, दैट मीन्स कि वो ऑलमोस्ट इतनी एक्यूरेसी परसेंटेज में हमें प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और दूसरी कि हम इसको नॉन इन्वेसिव तरीके से कर रहे हैं। अभी डायबिटीज का हमने डायबिटीज के लिए ग्लूकोज का मेजरमेंट तो कर दिया, ठीक है, पर अभी हम टेक्नोलॉजी से क्या चाहते हैं कि वो उसका सॉल्यूशन भी मुझे पॉइंट ऑफ केयर सर्विस में हम क्या बोलते हैं कि जहां पे मुझे वो पता चला है उसी टाइम पे उसका पॉइंट ऑफ केयर है। जैसे कि फर्स्ट एड सर्विस क्या होती है कि अगर आपका कहीं पे कुछ भी एक्सीडेंट या वगैरह हुआ तो उसी जगह पे जाके आपको वो प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाए, ठीक है। तो हम टेक्नोलॉजी से भी यही चाहते हैं कि अगर मुझे हाई ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू पता चली तो उसके बाद मुझे तो कोई प्रॉब्लम पता चला है, ठीक है, कि अगर मेरी ग्लूकोज की वैल्यू हाई है और वो मुझे पता चल रहा है तो वो मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम के बारे में पता चल रहा है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मुझे उसी वक्त करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इसको पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट किया है। तो बेसिकली क्या है कि हमारे डिवाइस से आप अपनी ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू मेजर कर पाते हो, वो वैल्यू आपके क्लाउड पे स्टोर होती है। उस वैल्यू को डॉक्टर, हॉस्पिटल या आपके कोई भी क्लोज है जो केयर टेकर है वो उसको देख सकता है। फिर उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो ग्लूकोज की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने इंसुलिन का डोज ले सकती हो। अगर आपके इंसुलिन की मात्रा बहुत कम है तो आपको इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ेगा, या तो फिर आपको इंसुलिन का कुछ दवाई लेनी पड़ेगी। पर अभी के सिस्टम में क्या है कि मैं अपनी ग्लूकोज की वैल्यू प्रेजेंटली क्या है मुझे नहीं पता। मैं तो रात को खाना खाने से पहले 5 या 10 मिनट या 15 मिनट पहले एक गोली ले लेता हूं। अभी मुझे नहीं पता कि मेरी ग्लूकोज की वैल्यू क्या है, पर मैंने गोली ले ली। जैसे कि मैंने बताया कि आपके बॉडी में ग्लूकोज की वैल्यू 80 से कम गई ना तो भी प्रॉब्लम है। तो दैट मीन्स कि आप ग्लूकोज का हायर डोज भी नहीं ले सकते, आप इंसुलिन का हायर डोज भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वो ले लिया तो आपकी वैल्यू अगर कम जाती है, जिसको हम हाइपोग्लाइसेमिया स्टेट बोलते हैं, जिसमें आपके मेंटल प्रॉब्लम चालू होते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको नहीं करना है। तो हमारा सिस्टम क्या करता है कि नॉन इन्वेसिव तरीके से ग्लूकोज को तो मेजर कर ही रहा है। उस मेजर करने के बाद क्या करता है कि उसके लिए कौन सा प्रॉपर आपको इंसुलिन डोज लेना है। अगर आप इंसुलिन ले रहे हो तो क्या कर सकते हो कि इंसुलिन पंप है, इंसुलिन पंप में से आपका इंसुलिन आपकी बॉडी में इंजेक्ट करना है, पर वो किस मात्रा में, उसकी क्वांटिटी क्या होगी वो आपका अभी का जो ग्लूकोज का वैल्यू है वो डिसाइड करेगी, ठीक है। तो ये एक क्लोज लूप सिस्टम हुआ कि जिसमें मैं अपने बॉडी से ग्लूकोज की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहा हूं, वो हाई ग्लूकोज की वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए अपने बॉडी में फिर से एक इंसुलिन का डोज ले रहा हूं कि जो मेरी प्रेजेंट ग्लूकोज की वैल्यू के हिसाब से हो, ठीक है। अभी इसके लिए हमने एक कुछ मॉडल बनाया है। ये मॉडल के बारे में भी मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक चीज को डिस्कस कर पाऊं, ठीक है। पर ये एक ओवरऑल आपका सिस्टम है कि मैं अपने बॉडी में से जो भी ग्लूकोज की वैल्यू है उसको स्टोर कर रहा हूं। उस स्टोर करके फिर मैं क्या करता हूं कि मैं कौन से स्टेट में हूं, मेरा नॉर्मल है
तो कोई चिंता नहीं। मेरा अगर ज्यादा है तो मुझे वो इंसुलिन का डोज लेना है और फिर से इंसुलिन का डोज लेके मुझे अपने ग्लूकोज की वैल्यू को कंट्रोल करना है। तो हमने कुछ ग्लूकोज इंसुलिन मॉडल भी तैयार किया है, उसको सिमुलेट करके हमने कुछ पेशेंट पे वेरीफाई भी किया है, और जिसकी वजह से हम बता पा रहे हैं कि हमारा सिस्टम बहुत सटीक तरीके से आपके ग्लूकोज की वैल्यू को कंट्रोल करेगा। दूसरा कि हमने सिक्योरिटी एस्पेक्ट में भी कुछ काम किया है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं बताता हूं, पर सिंस हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो कितना प्राइवेट इंफॉर्मेशन है और कितना सिक्योरली अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। तो वो भी एक पार्ट है, पर हम अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये सिक्योरिटी का पार्ट है। अभी मैं सिर्फ मीन्स 5-10 मिनट में डायबिटीज और कोविड का रिलेशन क्या है ये बताऊंगा, और फिर अगले 10 मिनट में अपनी कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा। तो डायबिटीज और कोविड-19 बहुत क्लोजली रिलेटेड है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप दुनिया का डेटाबेस निकालो तो उसमें से आपको पता चलेगा कि जितने भी कोविड इन्फेक्टेड हुए या स्पेसिफिकली जितने की भी डेथ हुई है उसमें से 35 से 40%, दैट मीन्स में 3 में से 1 तो एटलीस्ट ऐसा ही कि जो जिसको पहले से डायबिटीज है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो डायबिटीज जो है वो आपका लिंकेज कॉम्बोडिटी, दैट मीन्स कि वो एक ऐसा है कि जो आपके जो पहले भी पेंडेमिक हुई थी, जैसे कि MER सीवियर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2003 में हुआ था, मार्स हुआ था, H1N1 जो ग्लोबल पेंडेमिक हुआ था, उस टाइम पे भी जो सबसे ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे थे इस पर्टिकुलर वायरस से, तो वो डायबिटीज पेशेंट है। ठीक है, अभी वायरस जो भी है और पर्टिकुलरली कोरोना वायरस जो है वो डायबिटीज पेशेंट को इतना क्यों परेशान करता है, उसकी 2 रीजन है कि आपका वायरस भी जो है जो उसको म्यूटेट करता है दैट मीन्स कि वो अपना ही कुछ बहरूपिया रंग बना के वो मीन्स स्वरूप बदलते रहता है। ठीक है, तो वो आपकी ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू हायर हो ना तो उसको म्यूटेशन प्रोसेस में अच्छा हेल्प मिलता है। ठीक है, और फिर वो आपकी इम्यूनिटी, आपके डायबिटीज आपकी इम्यूनिटी को भी इंफेक्ट करती है। तो आपकी जब भी इम्यूनिटी वीक होती है ना तब ये वायरस जो होते हैं ना वो आपके बॉडी में आपको जकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो सिर्फ आपका डेटाबेस हुआ कि डायबिटीज से 9.2% लोग, ये मेरा डेटा कुछ ओल्डर है क्योंकि ये मैंने एक पेपर लास्ट टाइम जब कोरोना वायरस हुआ था तब लिखा था, तो वो पेपर के डेटाबेस से मैंने ये उठाया है। तो वो आप देखोगे तो जो प्रीवियसली आपका मीन्स कॉम्बोडिटी उसमें डायबिटीज सेकंड पे आ रही थी। सो बेसिकली होता क्या है कि आपके जब डायबिटीज होता है तब आपके ग्लूकोज इंसुलिन की वैल्यू इम्प्रॉपर होती है। अगर आपकी वैल्यू ग्लूकोज इंसुलिन की इम्प्रॉपर होती है तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है डायबिटीज कीटोनाइसिस। ओके, तो वो हार्मोन की वैल्यू इंक्रीज होती है, और वो हार्मोन जो है वो एक्चुअली में एक प्रोटीन है, वो हमारा जो बॉडी में प्रोटीन है उसके साथ जो ये वायरस है वो बहुत इजीली उसके साथ मींस बाइंड हो सकता है, उसके साथ चिपक सकता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज की वैल्यू ज्यादा है तो ये वायरस आपको और ज्यादा तरीके से इंपैक्ट कर सकता है। तो ये वही है आपका जो मैंने अभी आपको बताया। अभी डायबिटीज है तो उसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने कोविड में देखा कि बहुत सारे लोगों ने डिप्रेशन का, मेंटल हेल्थ का सफर किया। ठीक है, तो वो भी एक साइड इफेक्ट है कि डायबिटीज की वजह से अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाए तो उसकी वजह से आपको कुछ डिफरेंट तरीके से और प्रकार के प्रॉब्लम्स भी, दिक्कतें आ सकती है। अभी अल्टीमेटली हमें यह ध्यान रखना है कि हमें अपने आप को इंडिपेंडेंटली बनाना है। हम क्या है कि अपनी लाइफ में डॉक्टर से बहुत सारा रिलाई करते हैं। अगर मुझे थोड़ा सा भी बुखार हो गया मैं डॉक्टर के पास दवाई लेने चला जाता हूं। ठीक है, आपको यह समझना है कि आपको अपने आप को ही सुरक्षित रखना है, उसके लिए और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो
तो उसके लिए आपको अपने आप को कॉन्फिडेंसली टेक्नोलॉजी से अवेयर करना पड़ेगा और आपको ये सारी टेक्नोलॉजी को अपने डे टू डे लाइफ में एडेप्ट करना पड़ेगा। आपको अपना डाइट भी अच्छी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मीन्स बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि केस स्टडी में कोविड-19 और ये कुछ नंबर है कि अगर आप देखोगे कि कोविड-19 से मरने वालों की संख्या कौन कौन से देश में सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो आप नंबर देखोगे यूएसए, इंडिया, ब्राजील, फ्रांस एंड रशिया, चाइना, ये सारे देशों में सबसे ज्यादा कोविड के मरने वालों की संख्या है। और अगर आप देखोगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज मरीज कहां पे पाए जाते हैं, तो ये भी आपको यही 5 कंट्री मिलेंगे, ठीक है। सो देयर इज नो सरप्राइज कि जहां पे सबसे ज्यादा डायबिटीज है वहां पे ही कोविड का इंपैक्ट सबसे ज्यादा हो रहा है। हमारा इंडिया डायबिटीज में 2nd नंबर पे है, ठीक है। तो हमारे को ये होना स्वाभाविक है। ये दूसरी टेक्नोलॉजी है जो अभी इसके रिलेटेड नहीं है, तो मैं इसको अभी क्विट कर रहा हूं। ये आपको एक समझने की जरूरत है, जो एक मोबाइल ऐप जो हमने डेवलप किया है, ठीक है, ये मोबाइल ऐप भी आपके डाइट को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है। हमने देखा कि डायबिटीज के लिए डाइट कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मुझे कौन सी चीज किस टाइम पे खानी है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक मोबाइल ऐप बनाया है। उसमें क्या कर सकते हो कि जब भी आप कुछ भी चीज खाना चाहते हो तो आप मोबाइल से वो इमेज को कैप्चर कर सकते हो। वो इमेज को कैप्चर करने के बाद आपको वो ऐप से ये पता चल जाएगा कि आपके ये खाने से आपकी बॉडी में ग्लूकोज की वैल्यू कितनी बढ़ सकती है, ठीक है। मुझे नॉन इन्वेसिव ग्लूकोमीटर से मुझे अपने कंटिन्यूस ग्लूकोज की वैल्यू पता चल सकती है, ठीक है। जैसे कि मुझे पता चला कि मेरी ग्लूकोज की वैल्यू अभी 130 है, तो अगर मेरी ग्लूकोज की वैल्यू 130 है और अगर कुछ ऐसी चीज खाऊंगा कि जिसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो 130 की वैल्यू 170 180 होगी, जो 150 को क्रॉस करेगी। तो जब मेरी ग्लूकोज की वैल्यू 130 है, उस टाइम पे मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं खा सकता कि जिससे मेरी ग्लूकोज की वैल्यू बढ़े। तो हमने जो ऐप डेवलप की है वो आपको बताएगा कि आपकी ग्लूकोज की वैल्यू अगर ये है तो आपको ये चीज अभी नहीं खानी है, ठीक है। वो आपको बताएगा कि अभी आपको कौन सी चीज खानी है, और अगर आपने कोई चीज खाई है तो उससे आपकी प्रोजेक्टेड ग्लूकोज की वैल्यू कौन सी होगी। अगर आपकी प्रोजेक्टेड ग्लूकोज की वैल्यू ये आती है तो फिर आप उस टाइम पे कौन कौन सा खाना खा सकते हो। अभी अच्छी सी चीज क्या है कि हम कोई भी चीज अगर खाते हैं ना, तो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज जनरेट होता है उसकी मात्रा फिक्स है, ठीक है। तो वो आपको मीन्स स्टडी है जिससे हमें पता चल सकता है। तो उसको उस डेटा को यूज कर हमने ये ऐप बनाई जो डायबिटीज पेशेंट को यूजफुल होगी। टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट ग्लूकोज और डायबिटीज पेशेंट के लिए यूज हो सकता है, जो मैंने अभी आपको बताया। हम जैसे कि मैंने बताया कि हम अपने फूड सप्लाई चेन को भी बहुत अच्छी तरीके से जानने की जरूरत है। हम जो खा रहे हैं वो बेसिकली सही चीज है कि नहीं, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि हम काउंटरफिट मीन्स की कुछ खाद्य पदार्थ जो होते हैं, खाने की चीजें, वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होती। और अगर आप देखोगे तो पिछले 1.5 साल में जब से कोविड चालू हुआ है तो सब खाने की प्रोडक्ट तो उस वजह से ही बेच रहे हैं कि भाई ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली इम्यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जो भी खाना खाते हो उससे आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है या नहीं, ये भी जानने की बहुत जरूरत है। तो आपको ये जानने की जरूरत है कि जो खाना खा रहे हो वो खाना आपको प्रॉपर फॉर्म में खाना है, अभी अभी वो प्रॉपर फॉर्म में है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज है जो एक्सपायर्ड हो गई है, अभी हालांकि जो पैक्ड फूड है उसमें तो एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, लेकिन जैसे कि अगर आपके फल सब्जी है उसको आपको पता ही नहीं चलता कि ये फल सब्जी मुझे खाने की जरूरत, अभी मैं खाऊंगा तो उसका मेरे का क्या इंपैक्ट होगा। क्योंकि फ्रूट्स के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फ्रूट्स में जो आपको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट और जो कैलोरी है वो आपको
कौन से टाइम पे खाने से मिलेगी वही इंपॉर्टेंट है। अगर वो चला गया तो उसके बाद वो एडवर्स इफेक्ट करता है, ठीक है। वो आप सोचोगे कि ये मेरे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करे, पर वो आपको इम्यूनिटी को रिड्यूस करेगा। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी हम सोच रहे हैं कि डेवलप कर पाए जिससे हम फूड की क्वालिटी को मेजर कर पाए। अभी हालांकि इसमें बहुत सारा रिसर्च चल रहा है और अभी कोई एक सटीक मींस आउटकम आया नहीं है। हम भी इस डायरेक्शन में अभी काम कर रहे हैं। तो हम एआई और आईओटी से हमारे डायबिटीज कम्युनिटी को बहुत तरीके से हेल्प कर सकते हैं और उसके कुछ प्रोडक्ट हमने बताए। अभी मैं आपको लास्ट 5-10 मिनट में हमारी कंपनी के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि अगर इफ यू आर अ फैकल्टी और यू आर अ स्टूडेंट, इफ यू वांट टू डू अ रिसर्च विथ अस, देन we also would be happy to help you, or we actually require a manpower in our group so that means we can move ahead with our vision whatever we have think about. तो बेसिकली हम जिस चीज को टारगेट कर रहे हैं वो डायबिटीज कम्युनिटी है जो 70 मिलियन से भी ज्यादा है। अभी जो ग्लूकोज मेजरमेंट के लिए सॉल्यूशन है वो ब्लड को, बॉडी में से ब्लड निकाल के उसको मेजर कर रहे हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि मुझे बॉडी में से कोई भी चीज पिंच नहीं करनी, बॉडी के आउटर सरफेस से ही ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू को मेजर करना है। और दूसरी चीज, जो भी चीज बनाए वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। अगर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है तो फिर उसको कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा रह के लोगों के पास रीच हो। सो दैट इज समव्हाट सॉल्यूशन दैट वी रिक्वायर। तो बेसिकली ये डायबिटीज में हमने जब सोचा था तब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। पहली तो हमारे यहाँ देश सेकंड नंबर पे ओवरऑल डायबिटीज फिगर में है, ठीक है, चाइना के बाद हमारा दूसरा नंबर है। तो डायबिटीज पीपल तो हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है। उस डायबिटीज पीपल को हमें टारगेट करना है। अगर मैं इस डायबिटीज मार्केट के ग्रोथ की बात करूं तो ये अगले आने वाले सालों में बहुत ही ज्यादा रीच होने वाला है, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट की संख्या बढ़ने ही वाली है, ठीक है, और जिसकी वजह से आपका इस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत डिमांड होने वाली है, ठीक है। अगर मैं सिंपल सी चीज की बात करूं तो एक डायबिटीज पेशेंट जो होता है वो बेसिकली अपने रोज हर एक साल में अपने पीछे $36 जो तकरीबन कितना होता है, 4 मीन्स 25 से 30 हजार रुपए का ऑलमोस्ट एस्टिमेशन आएगा, ठीक है, उतना अपने लिए यूज करता है, ठीक है। वो या तो मेजर के लिए हो या फिर उसकी दवाई के लिए हो, ठीक है। वो एक आपका बहुत ज्यादा एक एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसको आपको अच्छी तरीके से मैनेज करने की जरूरत है। तो ये हम जो सॉल्यूशन बता रहे हैं उससे आपको ये मैनेज करने में आसानी रहेगी। सो बेसिकली हम प्रिसाइज ब्लड ग्लूकोज मेजरमेंट चाहते हैं जो बेसिकली शॉर्ट एनआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से ऑप्टिकल डिटेक्शन पे काम कर रहा है, ठीक है। हमने इसके इनिशियल कुछ ट्रायल किए, अभी भी हमारा प्रोडक्ट कोई मार्केट रेडी स्टेज में नहीं है। हमने तो इसका लैब प्रोटोटाइपिंग बनाया, दैट मीन्स कि हम अपने एंड पे कुछ रीडिंग लेके इसकी वैल्यू को मेजर कर पा रहे हैं और उसकी वैल्यू को कोरिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी भी वो पोर्टेबल सॉल्यूशन नहीं बना। पोर्टेबल सॉल्यूशन में तो क्या चाहिए कि वो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, वो वहीं पे प्रोसेस करके आपको वैल्यू डिस्प्ले करना चाहिए, जैसे कि आपका पल्स ऑक्सीमीटर करता है, ठीक है। वैसे ही कुछ टाइप का डिवाइस हम बनाने के फेज में है। तो ये तो जो मैंने आपको बताया कि शॉर्ट एनआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे काम कर रहे हैं हम, कुछ मशीन लर्निंग मॉडल को यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से ये यूज हो रहा है। ये हमारा बेसिकली वैलिडेशन फेज है जिसमें हमने कुछ 97 सैंपल को यूज किया है और उससे हमने कुछ एक्यूरेसी निकाली है, जो हमें पता चल रहा है कि वो क्लिनिकली हम इसको यूज कर पा रहे हैं। फिर हमने कुछ जो मोबाइल ऐप डेवलप किया है, वो मोबाइल ऐप आपको बताएगा कि आपको कौन सी चीजें खानी है। अगर आपका ग्लूकोज वैल्यू इतना है तो आपको कितने टाइम के लिए एक्सरसाइज करनी है कि जिसकी वजह से आपकी ग्लूकोज की वैल्यू कंट्रोल में हो। जरूरी नहीं कि दवाई लेनी पड़े। अगर आप प्री डायबिटिक फेज में हो तो आप कुछ एक्सरसाइज करके भी उसको कंट्रोल में कर सकते हो, ठीक है। तो हमने एक कंप्लीट डायबिटीज मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है जिसमें ग्लूकोज की वैल्यू आप प्रेजेंटली फाइंड आउट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली कौन से इंसुलिन, कितना इंसुलिन चाहिए उसको आप इंजेक्ट कर सकते हो। आपकी ग्लूकोज की वैल्यू भी क्लाउड पे
बहुत लंबे टाइम तक रह सकती है। ये मोबाइल एप्लीकेशन के साथ भी इंटीग्रेट किया है, जिसमें आप भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी चीज खानी है, कौन सी चीज नहीं खानी है। ये जस्ट हमारा कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है जो शायद अभी यूज करने की जरूरत नहीं है। हमने बेसिकली जो टेक्नोलॉजी पार्ट है, हमें उसमें नियर इंफ्रारेड यूज किया है, जो आपकी सेंसिटिविटी हाई प्रोवाइड करता है। आपका सॉल्यूशन भी पोर्टेबल है, उसमें आप कई बार भी मेजरमेंट कर सकते हो दिन में। आपका नॉइज इफेक्ट जो होता है वो मिनिमम होता है और कॉस्ट भी कंपैरेटिवली लो होता है। हमने इसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए एक पेटेंट भी फाइल की है, जो बेसिकली लास्ट ईयर फाइल की थी। तो यूजुअली पेटेंट फाइल करते हैं तो 2-3 साल लगते हैं उसका आउटकम आने में, तो हम भी उसी फेज में अभी हैं। तो ये बेसिकली हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आगे रहेगा कि जो हमारा लैब प्रोटोटाइपिंग है उसको क्लिनिकली वैलिडेट किए जाए, और अगर इसको कॉमर्शियल लेवल पे ले जाना है तो एक DGCI अप्रूवल एजेंसी है, ठीक है। जैसे कि वैक्सीन का भी अगर किसी को देना है तो उसके लिए इंडिया में DGCI से अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक बॉडी है कि जो मीन्स कुछ पैरामीटर को उन्होंने सेट किया है, अगर वो पैरामीटर आप अचीव कर पाते हो तो वो आपकी मीन्स डिवाइस को कॉमर्शियली सेल करने के लिए इजाजत दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने जस्ट कॉम्पिटिटिव एनालिसिस किया। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हमारा जो ग्लूकोमीटर नॉन इन्वेसिव है वो दुनिया में पहला है, ठीक है। कई जगह पे अभी रिसर्च लेवल पे काम चल रहा है। ऑफ कोर्स इफ आई से दैट कि इंडिया में इसके रिलेटेड अभी कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आया नहीं है। फॉरेन कंट्री में ये कुछ लेवल पे यूज हो रहा है, लेकिन उसके लिए भी प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत महंगा है, $5,000 से $6,000 है। तो आप इसकी कॉस्ट लिखा लो लाखों में है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसकी कॉस्ट को कम करके हम बेसिकली सोच रहे हैं कि हम इसको कैसे हम सोसाइटी के लिए यूज कर पाए। तो ये कुछ फिगर्स एंड फैक्ट है कि हमारा CHGA मींस ग्लूकोज मेजरमेंट का मार्केट कितना बढ़ेगा। सो 74.5 मिलियन इज अ मार्केट दैट कुड बी इन 2026, ठीक है। तो बेसिकली हमारी जो स्व आरोग्यम कंपनी है वो हमने जनवरी में एक्चुअली में रजिस्टर की थी। फिर हम यहाँ पे ही हमारे यहाँ पे MNIT में एक इंक्यूबेशन सेंटर है, उसमें हमने इंक्यूबेट किया है, जो बेसिकली मेडिकल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन को टारगेट करती है, सेल्फ केयर डिवाइस बनाती है, जिसमें हम मेनली डायबिटीज के लिए अभी सोच रहे हैं, और ये कंपनी रजिस्टर्ड है। तो ये हमारे ग्रुप मेंबर हैं, हम कुछ 3-4 लोग हैं, जिसमें हमने डॉक्टर को भी अभी इन्वॉल्व किया है। अभी डॉक्टर हमें अपने फीडबैक देंगे, हम अभी अपने ट्रायल फेज में चालू करने वाले हैं, और डॉक्टर से जो भी इनपुट है उसके हम अपने डिवाइस को इम्प्रूव करेंगे। सो इससे मैं अपने लेक्चर को कंप्लीट करता हूं। कोई भी अगर आपके डाउट है तो मैं मीन्स आपके डाउट को जो भी मेरे एंड पे में बन सकता है मैं आपको उसको रिजोल्व करने की ट्राई करूंगा। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस नाउ। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you Do you very have any much. questions? I have a question, Dr. Joshi. हाँ, yes sir. Whatever you are that wearing on finger, हाँ you sir. are connecting through wires to the board. Yes sir. हाँ sir. Can we go for some Bluetooth module and we can make it wireless? हाँ सर, वो तो डेटा एक बार अगर आपका आ रहा है तो उसको वायरलेस तरीके से कर सकते हो। उसमें सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मींस वो कर ही सकते हैं। एक्चुअली में आर्डिनो बोर्ड में आपका एक वायरलेस मॉड्यूल ZigBee या XBee या कुछ भी आप लगा सकते हो, वो आर्डिनो बोर्ड से वो वैल्यू वायरलेसली आपके मींस क्लाउड पे चली जाएगी। अल्टीमेटली हम यही सोच रहे हैं कि बेसिकली वो पोर्टेबल होना चाहिए, ठीक है, कि वो आपको कहीं पे भी मींस जैसे कि, पर उसके लिए क्या है कि हमें 24/7 अगर पोर्टेबल बनाना है तो उससे बैटरी की लाइफ का भी हमें देखना है कि बैटरी की लाइफ हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो ये बहुत अर्ली स्टेज में है, क्योंकि हम अपने लैब में एक ही जगह पे इसको लगा के नॉन पोर्टेबल वे में रीडिंग लिखा के अभी सिर्फ एक्यूरेसी को वेरीफाई कर रहे हैं। एक बार इसकी सटीक एक्यूरेसी मिल गई जिससे हमें पता चले कि भाई ये कंपोनेंट्स अभी स्टैंडर्ड है,
ये कंपोनेंट सफिशिएंट है मुझे इतनी एक्यूरेसी लेने के लिए, तो उसके बाद हम शायद सोचेंगे कि इसको कौन से कॉम्पैक्ट तरीके में एक डिवाइस की फॉर्म में बना पाए जिससे वो बेसिकली किसी भी यूजर के लिए बहुत इजीली यूज हो पाए। Yeah, student, please ask some questions. सर इसमें मैं एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता हूँ हाँ कि जैसा आपने डायबिटीज में काम करा, शुगर में ग्लूकोज लेवल डिटरमाइन कर, हाँ इसी तरह से एक और बीमारी होती है किडनी फेलियर का, और वो किडनी फेलियर बेसिकली क्रिएटिनिन का लेवल होता है ब्लड में, उसके कारण होता है। तो हाँ। क्या सिमिलर प्रोटोटाइप क्रिएटिनिन मॉनिटरिंग के लिए भी डेवलप किया जा सकता है क्या? कर सकते हैं। बेसिकली वो स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। वो बेसिकली कैसे, देखो ये जो हमने हाँ हाँ ठीक है, आप बताओ लैब में डिटेक्शन उसका स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही होता है, हाँ मैं वही बता रहा हूँ। डिटेक्शन होता बेसिकली है। किडनी डिसीज की जो है ब्लड ना, का वो स्पेक्ट्रोस्कोपिकली ही। हाँ अभी 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 हमारा ये जो हम सेकंड चीज जो इनको इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी ये हमारा पहला चीज खत्म नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए हम सेकंड चीज के लिए बात नहीं कर रहे। लेकिन देयर इज अ क्रोनिकल किडनी डिसीज भी क्रोनिकल ही है, ठीक है। तो जो भी क्रोनिकल है, जो ग्रेजुअली आपकी बॉडी में डेवलप हो रही है, तो उसके लिए कंटिन्यूस मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हमने ये सेटअप बनाया है वो डेफिनेटली उसके लिए भी काम कर सकता है, पर अभी तक वो डायरेक्शन में हमने काम स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि इसमें कर सकते हैं और इसमें बहुत सारा स्कोप भी है। मैं यही स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा और उनको सजेस्ट भी करता हूँ कि इस तरह की प्रॉब्लम को वो आइडेंटिफाई करें और आपसे मोटिवेट होकर डिपार्टमेंट के एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ में इस तरह के सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश करें। तो मैं ये सोचता हूँ कि स्टूडेंट्स यदि आपके टच में रहेंगे तो हमारा डिपार्टमेंट उस चीज़ को मोटिवेट करेगा, और राहुल राज सर, चौधरी सर के एबल गाइडेंस में और इस चीज़ को आपके गाइडेंस में इस चीज़ को आगे कैरी कर सकते हैं। ये उनके लिए भी एक इनोवेटिव वर्क होगा। अच्छा है। मैं ऐसा बहुत अच्छी सोचता हूँ। तरीके से बोला कि अभी क्या है कि आज से 10-15 साल पहले जब शायद हम पढ़ रहे थे और उस टाइम की बात कर रहे हैं, तब क्या था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैं तो इसी में अपना रिसर्च करूंगा। अभी सच में बताऊं तो है ना, सोसाइटी को ऐसे स्टबन इंजीनियर की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अपने अम्ब्रेला को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो सोसाइटी का प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन, अभी मैं खुद ही बताऊं कि मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि सर मुझे VLSI पसंद है, तो मैं VLSI में काम करना चाहता हूं और फिर मैं उसके ऊपर प्रोजेक्ट करूंगा, ठीक है। अभी एक्चुअली में हमारी सोसाइटी को जरूरत क्या है कि हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है और वो प्रॉब्लम के लिए कौन सा अप्रोच सही है। हो सकता है कि वो VLSI, कम्युनिकेशन, एम्बेडेड या फिर कोई और तरीके से हो सकता है। तो उस प्रॉब्लम के लिए कौन सा अप्रोच सबसे सही है उसको एडॉप्ट करने की जरूरत है, रादर देन कि नहीं मैं रिस्ट्रिक्ट करूंगा, नहीं भाई मैं तो इसमें ही जाना चाहता हूं तो मैं इस पे ही रिसर्च करूंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर हम एक्चुअली में जो अचीव करना चाहते हैं कि बेसिकली हम जो काम करें वो सोसाइटी के लिए यूजफुल हो। नहीं तो क्या होगा कि हम जो काम करते हैं उसको पेपर छाप के वगैरह करके तो बहुत कुछ हमें उसके रिकॉग्नाइजेशन पे मिल सकते हैं, ठीक है, पर वो जो इनर सेटिस्फेक्शन है ना वो आपको नहीं मिलेगा। पर अगर आपने कुछ ऐसा बनाया है, वो अगर 5 लोग भी यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में और उसके उनकी कुछ हेल्थ कंडीशन को इंप्रूव कर रहा है, तो वो हेल्थ केयर के लिए बहुत बड़ा आपका अचीवमेंट होगा। आप तो सिर्फ ये बताना है कि मैंने जो बनाया है वो रियल में यूज हो रहा है। वो ऐसी कोई चीज नहीं कि दैट इज नॉट टेंजिबल इन द सेंस कि वो कहीं पे फिजिकली एग्जिस्टेंस हो। वो फिर आपका नॉन टेंजिबल रिसर्च ही रहता है कि जिसमें आपने कुछ किया है, सिमुलेशन किया और वो कंप्यूटर पे बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। But ultimately, you need to target the real world problem, and for those problem, which one is best suited approach?
रादर देन फिक्सिंग कि नहीं भाई सच में बताऊं तो मैं भी VLSI का बंदा था, लेकिन अभी इसके लिए ये ऑप्टिकल है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ये सब मुझे पढ़ना पड़ा। अभी क्या करेंगे, प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो भी सही तरीका है वो हमें एडॉप्ट करना पड़ेगा। फिर मैं ऐसा बोलूंगा कि नहीं मैं तो VLSI का बंदा हूं, इसको इसमें कुछ भी करके VLSI का सॉल्यूशन ही ढूंढूंगा, तो फिर वो नहीं चल सकता। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से हमें भी चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, और हमें भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि भाई ये चीज के लिए ये अप्रोच बेस्ट है, तो मैं उस अप्रोच में थोड़ा अपना नॉलेज बढ़ा दूंगा, और फिर आपको मीन्स मैं मानता हूं कि वो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, और वही सोच के साथ हमने भी कंपनी रजिस्टर की है, वरना सच में मान लो तो मीन्स आप देखो आज से 10 साल पहले देखो तो वो टीचर होता है तो वो टीचर बोलेगा मेरा काम तो पढ़ाने का है, मैं क्या ये सारी चीजों पे करता रहूंगा। लेकिन गवर्नमेंट अभी कुछ अलग सोच रही है। ठीक है, कि बेसिकली हम ही जो है जो कुछ नया नया कर सकते हैं, और टीचर अगर है ना तो टीचर को खुद नया करने की जरूरत नहीं है, वो एक स्पार्क लाने की जरूरत है जिससे स्टूडेंट ही कर लेगा। ठीक है, पर उनको एक प्रॉपर गाइडेंस देने की जरूरत है, और उस गाइडेंस से हम बहुत कुछ अपने डे टू डे लाइफ में चेंज ला सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये जो कोविड और पेंडेमिक सिचुएशन है उसमें मैं अगर पर्सनली ऐसा मानता हूं कि इंजीनियर का रोल बहुत अहम हो सकता था, लेकिन इंजीनियर फेल्ड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। Doctor has done really well, but engineer failed, and because of that this crisis has have seen this much greater impact. Okay, so आपको भी अभी यही देखना है कि ये एक शुरुआत है, अभी हम इससे आगे क्या बढ़े और जो भी हम करें वो सोसाइटी के लिए कुछ यूजफुल हो। ठीक है, जिसकी वजह से ही ये गवर्नमेंट ने अभी बहुत जगह पे इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर किए हैं, और मैं आपको बताऊं कि अभी स्टूडेंट स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट बहुत ही एक्टिव है, वो आपको बहुत सारी जगह है, आप चाहो तो मैं आपको कनेक्ट कर सकता हूं, वो वहां से आपको फंडिंग मिल सकती है, सिवाय आप रेडी उसके लिए रेडी होने चाहिए और आप अपनी विलिंगनेस दिखाने चाहिए। तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, तो यही मैं आपको सर बताना चाहता था। Yeah, थैंक यू वेरी very मच true. सर। Please, Rohit sab. थैंक यू वेरी मच सर। ये आपने इस तरह से मोटिवेट करा स्टूडेंट्स को, और मैं ये सोचता हूँ स्टूडेंट्स ने काफी कुछ चीजें सीखी, और जो आपके लास्ट के पंचिंग वर्ड्स थे कि फंड जो चाहिए होता है, जो मोटिवेशन चाहिए होता है, जो इनिशिएशन चाहिए है, जो पर्पस है, जो सोसाइटी को आप क्या देना चाहते हैं, इन सब चीजों से सुसज्जित होकर यदि स्टूडेंट रिसर्च के बारे में सोचे या आगे अपना स्किल है, तो आई थिंक हर्डल नहीं है जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकता। देयर आर मेनी फैकल्टीज हु आर रेडी टू हेल्प देम, there are many motivators like you who are always ready to give guidance to them. The only thing is initiation required by such students, and once they initiate, it is the umbrella of this engineering college Bikaner society which is definitely going to give them a shelter, and they will develop their own you can say uh, partnership, entrepreneurship. कटी हुई ठीक है सर। Rahul Raj sir. Sir. Thank you. It was a really very nice interaction with Dr. Joshi, and we have seen that how he identified the problem and how he developed that product and how he is developing that business model for that product also. तो बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिला है। यहाँ मैं कुछ बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि बहुत ज्यादातर बच्चों की एक बड़ी इच्छा रही है कि NIT में IIT में पढ़ने का मौका मिले और वहाँ गाइडेंस लेने का मौका मिले। So I believe that this can be a good opportunity that you come out and take some initiative and take guidance from Dr. Joshi in MNIT.
तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इस तरह का भी एक अच्छा मौका मिल सकता है कि आप डॉक्टर जोशी की गाइडेंस में हम लोग अरेंज कर सकते हैं आप लोगों के लिए MNIT में इस तरह का कोई शॉर्ट टर्म या इस तरह के जो कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। और आप हमारी कंपनी सर इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करती है, ठीक है, पर अभी हम मींस फिजिकली नहीं बुला रहे, तो कुछ बच्चे हमारे साथ एसोसिएटेड है जिसमें हम कुछ पार्ट उनको असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम कुछ और प्रॉब्लम के लिए भी अभी सोच रहे हैं जिसमें प्रोटोटाइपिंग हम बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इंटर्नशिप भी अभी कुछ बच्चों को ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई बच्चे इंटर्नशिप में अगर कुछ काम करना चाहे तो हम उसके साथ एसोसिएट हो सकते हैं। हम उसको कंपनी से सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं कि आपने हमारी कंपनी में ये पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन किया और इतने ड्यूरेशन में आपने काम किया है, ठीक है। तो वो हम कर सकते हैं। So that's open offer to all the students. You can come forward and take such type of opportunity for learning, and that you can identify that what the goals you can set in your career. So this was really a very great session with Dr. Joshi. So we thank you very much, and we hope you will be available all the time for our institution in the same way, and श्योर सर, with a very short notice you were not given that much time. एक बड़े छोटे से शॉर्ट नोटिस पे जैसे आपको हमने बुलाया और आप आए, और आपने इवन आज भी थोड़ा सा मुझे लगा कि जैसे आप कुछ हेल्थ वेल्थ का थोड़ा सा इशू खांसी वगैरह रही, बट हाँ सर, वो थोड़ा दिन से मुझे खांसी आ रही है। हाँ, so thank you very much, and we will move for that next session. ओके, थैंक यू सर।